નમસ્તે મિત્રો. મિત્રો, હર ઘર મિથિલિન બ્લુ, ઘર ઘર મિથિલિન બ્લુ અને મિથિલિન બ્લુથી જે સારવાર લોકોએ લીધી છે, ડૉક્ટરો હવે આપવાની શરૂ કરી છે અને આ અપાર સફળતાની પાછળ જે આપણા માર્ગદર્શક રહ્યા છે, જેમના માર્ગદર્શનથી આપણે આ અભિયાનની અંદર આગળ વધીએ છીએ, એવા દીપક ગોલવાલકર સાહેબના ખૂબ નજીકના મિત્ર અને ભાવનગરમાં સેવા બજાવતા ઓપ્થોલોજિસ્ટ એવા આંખના સર્જન ડૉક્ટર જગદીપ કાકડિયા સાહેબ આજે આપણી સાથે ફેસબુક લાઈવમાં જોડાવાના છે. મિત્રો, જગદીપ કાકડિયા સાહેબનો જે અત્યાર સુધી ગોલવાલકર સાહેબ જે મિથિલિન બ્લુની જે સારવાર અને રિસર્ચમાં જેમનો મોટો ફાળો છે, જે મિથિલિન બ્લુની સારવારની અંદર લોકોને જે રીતને એને દરેક જગ્યાએ દરેક લોકો આની સારવાર લઈ શકે એના માટે એક પ્રેરિત કરનારા એવા વ્યક્તિત્વ અને અમારા માટે વ્યક્તિગત આ ભગવાનથી ઓછા ક્યાંય નથી. જેમણે ભગવાન ન જોયા હોય ભાવનગરમાં જે ડૉક્ટર ગોલવાલકર સાહેબ અને એમની સાથે રિસર્ચ કરતી ટીમ જે રીતે લોકોને સારા કરી રહ્યા છે, એ બધા પરિણામો આપણી સામે આપણે જોયા છે અને એ પરિણામ અને એમના પ્રેરણાથી આપણે જે મિથિલિન બ્લુની એક અભિયાન ઉપાડ્યું છે કે હર ઘર મિથિલિન બ્લુ, ઘર ઘર મિથિલિન બ્લુ, તો આપણને આજે ડૉક્ટર જગદીપ કાકડિયા સાહેબે એના વ્યસ્ત શેડ્યુલમાંથી આપણી સાથે લાઈવમાં જોડાવા માટે આપણને સમય આપ્યો છે. એમને આપણે જોડીશું અને એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તેઓએ આ એક આપણી મુવમેન્ટમાં અમારું એક અમને પ્રેરણાની સાથે અમને પ્રોત્સાહન પણ મળે અને આ વિષય ઉપર અમે લોકોને વધુ સારી રીતે કઈ રીતને સમજાવી શકીએ, ડૉક્ટરો આ બાબતે મિથિલિન બ્લુથી સારવાર કઈ રીતને સારી રીતે કરી શકે, આ તમામ માહિતી માટે આપણે લાઈવમાં જોડી રહ્યા છીએ ડૉક્ટર જગદીપ કાકડિયા સાહેબને. હું તમને જોડું ત્યાં સુધી જે પણ મિત્રો આપણી સાથે જોડાણા છે તે મિત્રો વિડીયોને શેર કરે જેથી આપણે ડોક્ટરો સુધી આજે જે માહિતી પહોંચાડવાની છે કે જે ડોક્ટરો મિથિલિન બ્લુથી જો સારવાર શરૂ કરે. જી, ભાવનગરથી મારા મિત્ર જિગ્નેશભાઈ વ્યાસ આ લાઈવનું કોમ્યુનિકેશન કરી રહ્યા છે. લાઈવમાં જે જોડવાનો અને સાહેબ સાથે જે અમારો વિસ્તારમાં સંવાદ કરવાનો છે, એ સંવાદની આખી ભાવનગરથી જેઓ સંચાલન કરી રહ્યા છે એવા મારી પાસે સાથે જોડાયેલા છે જિગ્નેશભાઈ વ્યાસ. જિગ્નેશભાઈ, તમે જિગ્નેશભાઈ ફરીવાર તમે કનેક્ટ થાઓ. માત્ર જિગ્નેશભાઈ વ્યાસ એક જ રિક્વેસ્ટ મોકલશે, બીજા કોઈ મિત્રો રિક્વેસ્ટ ન મોકલે. જી જિગ્નેશભાઈ. જી નમસ્તે. નમસ્તે. વોઇસ ક્લિયર આવે છે. ઓકે. સાહેબનો પરિચય મેં દર્શક આપણા ફેસબુક મિત્રોને આપી દીધો છે. ડોક્ટર જગદીશ કાકડિયા સાહેબ આપણી સાથે અત્યારે લાઈવમાં જોડાવા જઈ રહ્યા છે. જે પણ આપણા અત્યાર સુધીના સવાલો હતા, અમે જિગ્નેશભાઈ અને અમે સાથે એ સવાલો ઉપર વિસ્તૃત માહિતી લોકો સુધી પહોંચે, લોકો સાથે ડોક્ટરો પણ આ સારવાર મિથિલિન બ્લુથી કઈ રીતને કરી શકે, તમામ માહિતી આપણે લોકો સુધી પહોંચાડવાની છે. અને જિગ્નેશભાઈ, આપ સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. ઓકે, જસ્ટ અ મિનિટ. જી, ત્યાં સુધી મિત્રો વિડીયો શેર કરજો, ગ્રુપમાં શેર કરો. આ મહત્વપૂર્ણ જાણકારી એટલા માટે જરૂરી છે કે જે ડોક્ટરો આ ભાવનગરની અંદર ડોક્ટર ગોલવાલકર સાહેબ અને કાકડિયા સાહેબ આ બંને જે પોતાના પ્રેક્ટિકલ અનુભવથી જે લોકોને સારા કર્યા છે, એટલે એવા ડોક્ટરો કે જેઓ સારવાર મિથિલિન બ્લુથી આપવા ઈચ્છે છે પરંતુ અનુભવ નથી હોતો, તો એ ડોક્ટરોને પણ આ મહત્વપૂર્ણ જાણકારી મળી રહે. જિગ્નેશભાઈ ફરીવાર કનેક્ટ થાય ત્યાં સુધી વિડીયો શેર કરજો મિત્રો.
જિગ્નેશભાઈ ત્યાં વાઈફાઈ છે? નહીં, વાઈફાઈ નો ઇસ્યુ નથી આવતો. ઇસ્યુ છે ને કનેક્ટિવિટી નો બ્લુટૂથ ની હારે સ્પીકર માં આવે છે. અચ્છા. જિગ્નેશભાઈ પહેલા તો સ્ટેન્ડ સ્થિર કરી દો સાહેબની સામે, ઓકે અને પછી ઓકે ઓકે પછી જે આપણે ચર્ચા કરવા. હા. ઓકે. હા હા. હવે નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણી સામે ભાવનગરના ખ્યાતનામ ડોક્ટર્સ ડોક્ટર જગદીશ કાકડિયા સાહેબ, કે જે ઓપ્થોલોજીસ્ટ છે અને સિન્સ લાસ્ટ મોર દેન 35 યર્સ થી તે ભાવનગરની અંદર સેવા બજાવી રહ્યા છે. અને ખાસ કરીને મેન વસ્તુ એ કે સાથોસાથ મિથિલિન બ્લુ જે કહી શકાય કે જે કોરોનાની અંદર સંજીવની સમાન છે, એ મિથિલિન બ્લુ ના સંશોધનની અંદર પણ જગદીશ કાકડિયા સાહેબનો બહુ મોટો ફાળો છે. અને એ ફાળો સાથે ડોક્ટર જગદીશ કાકડિયા સાહેબ એ ડોક્ટર ગોલવાલકર સાહેબના ખાસ અંગત મિત્ર પણ છે એમ કહી શકાય. એટલે આપણી જોડે સમક્ષ ડોક્ટર જગદીશ કાકડિયા સાહેબ છે. તો નમસ્કાર સાહેબ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો સર જય સ્વામિનારાયણ સર. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો સર આપનો કિંમતી સમય આપવા બદલ ખૂબ ધન્યવાદ. અને અશ્વિનભાઈ પણ આપને નમસ્તે કરે છે. નમસ્તે. નમસ્તે સર. મિત્રો. હવે મિત્રો, હવે જે કઈક આજની કોરોનાની પેન્ડેમિક સિચ્યુએશન છે, તો એની અંદર આપણે શું કે મિથિલિન બ્લુ કે જે અશ્વિનભાઈ જે કઈ કાર્ય શું કે પોતાના થ્રુ જે કઈ સેવા આપેલી છે એ તો છે જ, પણ સાથોસાથ જે એ સંજીવની ને ડેવલપ કરવા માટે જે બે મેન મહાનુભાવો કહી શકાય કે ડોક્ટર દીપક ગોલવાલકર સાહેબ અને ડોક્ટર જગદીશ કાકડિયા સાહેબ, તો એમાંના એક ડોક્ટર જગદીશ કાકડિયા સાહેબ આપણી જોડે છે, તો એ આપણને ઘણું ખરું ગાઈડ કરશે. તો સર, એક ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આપ એક એઝ એ ઓપ્થોલોજીસ્ટ છો સર, અને એઝ અ ડોક્ટર છો સિન્સ લાસ્ટ બહુ મોટો બહોળો અનુભવ છે સર આપને. તો આપને એક રિક્વેસ્ટ એવી છે કે સર એક મિથિલિન બ્લુ શું છે અને મિથિલિન બ્લુ કઈ રીતે વર્ક કરે છે, એ એક આપની લેંગ્વેજ ની અંદર આપ સારી રીતે આપ સમજાવી શકશો સર. સર્વ મિત્રોને ગુજરાતીમાં જ કહેવાનું છે ને? हाँ, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश बोथ लैंग्वेज सर. सर्वे मित्रों को मेरा प्रणाम। और सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा, आप करना वो बात. हाँ, सबसे पहले सबको मेरा प्रणाम। और आप सबको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैं एक्चुअली आई सर्जन हूँ, मैं एमडी नहीं। और भावनगर में पिछले 31 साल से मैं एज एन आई सर्जन यहाँ वर्क कर रहा था। लेकिन जब से पेंडेमिक शुरू हुआ तब से हमने अल्ट्रावायलेट लाइट और मिथिलिन ब्लू दोनों के ऊपर थोड़ा घनिष्ठ रिसर्च शुरू किया। और पेंडेमिक के आने से पहले भी हम लोग मिथिलिन ब्लू को, मैं और मेरे एक डॉक्टर मित्र है डॉक्टर रमेश शाह करके मुंबई में, वेरी लीडिंग आई सर्जन इन बॉम्बे. So we were actually using UV light to kill the viruses from the eye, conjunctiva में. आंखों में जो वायरस आते हैं उसको नष्ट करने के लिए यूवी लाइट्स यूज कर रहे थे. साथ જિગ્નેશભાઈ, હિંચકાને સ્થિર કરાવો તો અવાજનું ફ્લક્ચ્યુએશન ન થાય. हाँ, ओके जी सर. सॉरी. सो मिथिलिन ब्लू के आई ड्रॉप्स और यूवी लाइट दोनों का इस्तेमाल हम लोग आंखों के कॉर्निया की इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए कर रहे हैं. और वो रिसर्च हमारा चल रहा था पिछले 2 सालों से. और जब कोविड आया तो उस वक्त हमारे दिमाग में ये बात आई कि अगर एडिनोवायरस जो है जिससे कि आंखों में कंजंक्टिवाइटिस होता है, और हर्पीस वायरस जो है जिससे कि स्किन में और आंख में हर्पीस होता है, अगर ये दोनों आरएनए वायरस है, तो एडिनोवायरस और हर्पीस वायरस अगर मिथिलिन ब्लू से और यूवी लाइट से नष्ट हो रहे कुछ मिनटों में ही, 3 मिनट 4 मिनट के अंदर, तो फिर कोविड वायरस भी तो आरएनए वायरस है और करीब करीब हर्पीस वायरस का जैसा ही उसका स्ट्रक्चर है, खाली उसकी जो एंटीजेनिसिटी है, उसकी जो सरफेस प्रोटीन है और उसका जीनोम और एक्टिविटी अलग है, लेकिन उसकी जो रचना है लिपिड लेयर और ऊपर प्रोटीन लेयर की, वो करीब एक समान जैसी है. तो हमने सोचा कि
क्यों ना कोविड के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन उस वक्त रिस्ट्रिक्शंस बहुत थे एपिडेमियोलॉजिकल एक्ट के तहत, तो बहुत ज्यादा काम करना संभव नहीं था। इतने में हमको पता चला कि हमारे जो बहुत भावनगर के बहुत सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट है डॉक्टर दीपक गोलवालकर करके, तो डॉक्टर दीपक गोलवालकर तो 2008 से, मतलब आज से 12-13 साल पहले से निखिल ब्लू को टीबी के जो जंतु टीबी की दवा से मर नहीं रहे हैं, रिफाम्पिसिन या आइसोनियाजाइड या जो आईएनएच और इथाम्ब्यूटल वगैरह जो टीबी की दवा है, इसकी 3-4 दवा का जो कॉम्बिनेशन आता है, 183, 184, उससे भी मरता नहीं और टीबी बढ़ते चला जाता है। तो मिथिलिन ब्लू जो है वो उन्होंने 2008 से टीबी के दर्द मरीजों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करना चालू किया था और बहुत अच्छे रिजल्ट उनको मिल रहे थे। और आज तक में मेरा मानना है करीब न करीब उन्होंने 6-8 हजार से ज्यादा टीबी के पेशेंट्स को मिथिलिन ब्लू से बचाए, जिसको एक्सडीआर और एमडीआर बोलते हैं। एक्सडीआर मतलब एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट और एमडीआर का मतलब है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। तो ये तो वो इस्तेमाल कर ही रहे थे। और मैं आपको बताऊं 1876 में 1876 आज से 144 साल पहले मिथिलिन ब्लू दवा की संशोधन की गई और करीब 1950 जब पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार हुआ, तब तक में करीब 75 साल के लिए मिथिलिन ब्लू ही दवा थी जो एंटीबायोटिक के स्वरूप में इस्तेमाल हो रही थी। टीबी के अंदर भी, मलेरिया के अंदर भी, सिफिलिस और गोनोरिया, ये सब रोगों को नष्ट करने के लिए। और आपको याद होगा जब हम बहुत छोटे थे और स्कूल में पढ़ रहे थे, तो कभी क्रिकेट खेलते छिल गए या कभी चमड़ी के ऊपर कोई गड़गुमड़ हुआ या तो कभी हमको स्टाई हुई, तो हम अपनी जो फाउंटेन पेन थी, बॉल पेन नहीं, इस वक्त में फाउंटेन पेन, इंक वाली पेन आती, तो फाउंटेन पेन की जो स्याही थी पूरी ब्लू कलर की पूरी स्याही, उसको लगा देते थे तो जो वहाँ इन्फेक्शन होता था, पस या रसी जो होती वो तुरंत ही मिट जाती दूसरे दिन। जो हमको स्टाई हो रही थी आंख में वो भी मिट जाती। तो वो जो फाउंटेन पेन की स्याही थी उसमें भी मिथिलिन ब्लू था। उसी वजह से हम लोग स्कूल में भी स्याही को एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल करते थे। और अगर आपको याद हो तो बहुत पुराने जो जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स थे, वो कभी बच्चों के मुंह में छाले पड़ जाते थे तो मुंह में भी एक भूरे रंग की दवा नील कलर की लगा देते थे। तो मिथिलिन ब्लू तो 144 साल पुरानी है और उसका इस्तेमाल बहुत सालों तक, करीब न करीब 75-80 साल तक एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल के स्वरूप में होता रहा है। और 1950-60 के बाद एक एंटीबायोटिक इंडस्ट्री का एक नया ही आविष्कार हुआ और फार्मा कंपनी जो है, जो पेटेंटेड एंटीबायोटिक बनाने वाली, वो इतनी बलवत्तर हो गई, उनका मनी पावर और मसल पावर इतना बढ़ गया कि ये जो बहुत इफेक्टिव दवा थी लेकिन पेटेंटेबल नहीं थी और बहुत सस्ती थी, जिसमें कोई मुनाफा नहीं था, तो धीरे धीरे उसको भुला दी गई और ग्रेजुअली 1965 तक में मेडिकल कॉलेज की टेक्स्ट बुक में से भी उसका नाम निकल गया। तो अगर कोई 1965 से पहले मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हुआ डॉक्टर है तो उनको अभी भी मालूम है कि मिथिलिन ब्लू जो है वो इतनी एफिकेशियस है। लेकिन 1970 के बाद के जितने भी डॉक्टर्स पास होकर निकले हैं उनको मालूम नहीं है मिथिलिन ब्लू के बारे में बहुत ज्यादा, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में आता नहीं है। लेकिन अगर आप गूगल पे जाते हैं और अगर सर्च करते हैं कि मिथिलिन ब्लू एज एंटीवायरल या मिथिलिन ब्लू एज एंटी फंगल या मिथिलिन ब्लू एज बैक्टीरियसीडल, तो आपको करीब करीब 1 करोड़ के आसपास जो रिसर्च हुए हैं इसके रेफरेंसेस पढ़ने को मिलेंगे। तो मिथिलिन ब्लू कोई नई दवा नहीं है, खाली उसका एक पुनर्आविष्कार हुआ है, वो जिसके लिए हम लोग डॉक्टर गोलवालकर से बहुत आभारी हैं कि उन्होंने मिथिलिन ब्लू की दवा से, जब स्वाइन फ्लू का एपिडेमिक आया 2010 से 2012 के बीच में, तब भी 600 से 700 पेशेंट्स को मिथिलिन ब्लू से उन्होंने बचाया था। और स्वाइन फ्लू में तो बहुत ज्यादा मोर्टालिटी थी, इसमें तो मानो 100 में से 2 पेशेंट गुजर जाते हैं, 98 जो है वो जीवित रह जाते हैं SARS-CoV-2 में। बट स्वाइन फ्लू का वायरस इतना खराब था कि 100 में से 35 को ले जाता।
જિગ્નેશભાઈ અવાજ બ્લૂટૂથ નો અવાજ નથી આવતો. तो जैसे ही ये पेंडेमिक हाँ, शुरू हुआ बरोबर છે. ने इसको चालू कर दिया। और मैं आपको 3-4 रिसर्च के बारे में बताना चाहूंगा कि बेजिंग यूनिवर्सिटी और हांगझाओ यूनिवर्सिटी एंड मिलिट्री ऑफ मेडिकल साइंसेस ऑफ चाइना, ये 3 संस्था ऐसी हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा, डॉक्टर वालेरिया काइनो करके एक बहुत फेमस वायरोलॉजिस्ट है, जो कि यूरोप से है, और जिनेवा यूनिवर्सिटी में शी इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वायरोलॉजी। इनका एक पेपर पब्लिश हुआ है। तो ये 4 पेपर जो पब्लिश हुए, और एक डॉक्टर विक्टर सियाचेंको करके हैं फ्रॉम रशिया। तो ये 5 पेपर है, इसमें ये बहुत अच्छी तरह से साबित हुआ है कि मिथिलिन ब्लू से SARS-CoV-2 जो वायरस है वो 4 से 40 मिनट के अंदर पूर्ण तरीके से नष्ट हो जा रहा है। और दूसरा एक रिसर्च फेज 1, फेज 2 और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स पब्लिश हो चुके हैं। डॉक्टर आलमदारी करके एक बहुत बड़े एमडी फिजिशियन है, डॉक्टर दरायूस हामिदी आलमदारी, ये माशाद यूनिवर्सिटी फ्रॉम ईरान वहाँ प्रोफेसर है, और उनके टेक्निकल सहयोग में टेक्सास यूनिवर्सिटी लुबक नाम का शहर है, टेक्सास यूनिवर्सिटी और एबरडीन यूनिवर्सिटी फ्रॉम एबरडीन यूके यूनाइटेड किंगडम, ये तीनों यूनिवर्सिटी ने साथ मिलकर मिथिलिन ब्लू से आईसीयू पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जा सकता है उसका बहुत बड़ा रिसर्च किया है, और ये भी पब्लिक डोमेन में है। ये सब पेपर्स जो है साइंटिफिक पेपर्स, मेरी सभी डॉक्टर मित्रों से एक विनती है कि आप मिथिलिन ब्लू के बारे में अगर अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आप ये जो पेपर्स है अनपेड है, इसमें कोई फी नहीं है पढ़ने की। बहुत सारे पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें एक पेपर को पढ़ने के लिए आपने $25 $20 की फी भरनी पड़ती है, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में फ्री पेपर्स है। और आप अगर ये पेपर्स पढ़ेंगे तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि मिथिलिन ब्लू जो है SARS-CoV-2 वायरस को बहुत जल्दी से मार देती है और पेशेंट को बचा लेती है। तो ये बहुत कारगर है, बहुत इफेक्टिव। थैंक यू सो मच सर। सर एक खास एक आपने तो अच्छा एक मिथिलिन ब्लू के रिगार्डिंग एक बहुत सारा नॉलेज शेयर किया, लेकिन आपको एक आपके पास गाइडेंस है कि इसके रिगार्डिंग के मिथिलिन ब्लू का अभी सर यूएस में लाइक दैट उसके ट्रायल्स चल रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं सर? यूएस में न्यूयॉर्क में माउंट सिनाई हॉस्पिटल करके एक ग्रुप है जो कि वहाँ का एक एपेक्स मेडिकल इंस्टीट्यूट, और कह सकते हैं कि वो अपना एम्स के समकक्ष है। तो माउंट सिनाई हॉस्पिटल में इन लोगों ने बहुत सारे मरीजों के ऊपर इंट्रावेनस मिथिलिन ब्लू मतलब इंजेक्शन देके मिथिलिन ब्लू का आईसीयू के पेशेंट को बचाए, और इनकी जो केस स्टडीज है और इनके जो रिपोर्ट्स है वो भी ऑनलाइन उपलब्ध है, अगर कोई भी डॉक्टर पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी नजर में आई है अभी तक में, वो ये है कि कोरोना अगर आपको होना ही नहीं देना है, मतलब आपके शरीर में कोरोना को प्रवेश ही नहीं देना है, और अगर प्रवेश भी गया नाक में या गले में, तो बिफोर द कोविड वायरस कैन प्रोग्रेस एंड डिसेंड बिलो योर वॉइस बॉक्स, मतलब 2 प्रकार के कोरोना है, एक जो है वो अपर रेस्पिरेटरी कोरोना है, दूसरा जो है लोअर रेस्पिरेटरी कोरोना। तो अपर रेस्पिरेटरी कोरोना है वो बल्ले बल्ले खेलते हैं, जो लोअर रेस्पिरेटरी कोरोना है एक बार वायरस अगर लंग्स में गया तो न्यूमोनिया हो जाएगा, और जब न्यूमोनिया होता है उसके बाद स्थिति बहुत गंभीर और खराब हो जाती है। तो अगर आपने वायरस को गले से नीचे उतरने को अटकाना है तो मिथिलिन ब्लू से ज्यादा कारगर कोई दवा नहीं रही। करीब हमने मेरे 1000 फ्रेंड सर्कल में जो लोग मिथिलिन ब्लू ले रहे हैं उनको हमने ऑब्जर्व किया है। करीब 400 एमआर बंधुओं को हमने ऑब्जर्व किया है जो लोग मेरे से मिथिलिन ब्लू ले गए, और करीब 300 से 300 को हमने 3-4 महीने तक ऑब्जर्व किया है। तो लोग में फैमिली में पॉजिटिव आया है,
बाकी सबने ताबड़तोड़ शुरू कर दिया तो दूसरे लोगों में संक्रमण वो फैमिली में 2000 फैमिली में बोल रहा हूँ, जब मित्र वर्तुल में हमारे जो लोग रेगुलर मिथिलिन ब्लू लेते हैं 3 ml या 4 ml रोज को जीभ के नीचे रख के निगल जाना है और 2-2 बूंदे मिथिलिन ब्लू की नाक में डाल देते हैं, ताकि क्योंकि वायरस के 2 ही प्रवेश द्वार हैं शरीर के अंदर, 2 नाक और तो 2 नाक में आपने ड्रॉप्स डाल दिए और मुंह में रख के पूरी जीभ और पूरी जो आपकी तलवे की सतह है इसको अगर ब्लू कर दिया तो वहाँ मिथिलिन ब्लू हाजिर रहेगा 12 घंटे। तो कोई भी वायरस के अंदर ऑक्सीजन मतलब वायरस तो वो प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। एक पेपर मियामी यूनिवर्सिटी से ये भी पब्लिश हुआ है कि मिथिलिन ब्लू है वो सार्स कोवी डॉक्टर कनेक्शन थोड़ा पूर आवे छे धीमे से। एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ये रिसर्च किया है मियामी यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा। तो मिथिलिन ब्लू है वो वायरस के ऊपर की जो स्पाइक प्रोटीन है उसको डीनेचर कर देती है, वायरस का जो लिपिड लेयर है उसको भी वो ऑक्सीडाइज कर देती है। और ACE2 रिसेप्टर जो सेल में वायरस को घुसने की जो छेद है वो एक ताले जैसा है और वायरस के पास जो है वो स्पाइक प्रोटीन नामक एक चाबी है। तो ये चाबी से ही वो ताला खुलता है, इसको स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। ताला जो है उसका नाम है ACE2। तो मिथिलिन ब्लू blocks the ACE2 receptor, it also blocks the spike protein। तो वायरस को या तो वो मार देती है, अगर मार नहीं सकती है तो लेच होने से अटका देती है। So that means even if the virus is there, is not oxidized or is not killed, the virus will not be able to enter the cell। तो वायरस को मरने में 40 से 50 मिनट लगता है, लेकिन वो 50 मिनट में मिथिलिन ब्लू ये काम करता है कि वो वायरस को प्रवेश करने से अटका दे। तो इट स्टॉप्स द लेचिंग ऑफ द वायरस बाय ब्लॉकिंग। आप समझ लीजिए एक ताला है एक चाबी है, तो आपने चाबी को मरोड़ दिया, अब वो चाबी ताले के अंदर घुस नहीं पाएगी, तो ताला जो है उसके अंदर फेविकॉल भर दिया। तो कभी मानो कि चाबी को किसी ने तोड़ मरोड़ कर भी अगर सीधा कर लिया फिर भी वो ताला नहीं खुले। तो मिथिलिन ब्लू दोनों जगह पे काम करती है, चाबी को भी तोड़ देती है और ताले को अंदर से फेविकॉल भर देती है। तो ये समझ लीजिए आप। So the virus will not be able to latch, and in about 40 to 50 minutes the methylene blue will kill the virus। तो ये प्रिवेंटिव इसकी जो रोल है वो बहुत बहुत effective है। तो अगर कोई आदमी, मेरा मानना है कि ये मुंह में लेते और नाक में ड्रॉप्स डाल के रखते हैं तो उनका कोरोना का संक्रमण होने की संभावना जो है वो 99.9999%, मतलब एक 10,000 में एक आदमी होगा जिसको संक्रमण होगा अगर मिथिलिन ब्लू रेगुलरली लेता है तो। और कुछ लोगों को हुआ है जिनका हमने थोड़ी छानबीन करी तो पता चला कि वो इरेगुलर हो गए थे आपके सहित। Yes, I know, sir. Yes. तो अगर आप इरेगुलर मिथिलिन ब्लू लेने में है और अगर आपने आपके प्रिकॉशन को ढीला कर दिया तो आप संक्रमित हो सकते हैं। ये प्रेगनेंसी पिल जैसी बात है कि कोई लेडी है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल रेगुलर लेना है लेकिन 2-3 दिन के लिए भूल गई लेना, तो अगर उसको प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें वो दवा का कोई दोष नहीं है, वो व्यक्ति का दोष है। तो अगर कोई आदमी रिलीजियसली मिथिलिन ब्लू हमेशा के लिए लेता है तो उसको कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। ये संभावना बहुत 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 ज्यादा है नहीं होने की, और ये वैक्सीन से भी बहुत ज्यादा है क्योंकि वैक्सीन। अगले सवाल से पहले डॉक्टर साहब मैं एक बात कहना चाहूंगा। करीब 20-25 लोगों को फिर भी संक्रमण हो रहा था वैक्सीन लेने के बाद भी, और मिथिलिन ब्लू जो है उसमें 10 डॉक्टर साहब एक संभावना है, वैक्सीन में 100 में से 25 को होने की। तो मेरा मानना है कि मिथिलिन ब्लू जो है उसका प्रिवेंटिव रोल है वो वैक्सीन से भी बहुत ज्यादा असरकारक है। हालांकि कहने का मतलब ये नहीं कि वैक्सीन नहीं लेना है, वैक्सीन तो हर हाल में सबको लेना ही है, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी मिथिलिन ब्लू चालू रखना है क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद भी 25% संभावना है कि आपको संक्रमण होगा, तो मिथिलिन ब्लू चालू रख सकते हैं।
खाली ये देखना है कि जब आप वैक्सीन लेते हैं उसके एक दिन आगे से और 5-7 दिन पीछे मिथिलिन ब्लू लेना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वरना मिथिलिन ब्लू जो है वो वैक्सीन के वायरस को भी ऑक्सीडाइज करके मार देगी। क्योंकि इसको ये मालूम नहीं है मिथिलिन ब्लू के जो मॉलिक्यूल्स है उसको कि ये जिंदा वायरस है या मरा हुआ है, या तो ये रियल वायरस है या डमी वायरस है। वैक्सीन में क्या है, एक डमी वायरस है, खाली उसका मुखवटा है या उसका मोहरा है वो, लेकिन मिथिलिन ब्लू को मालूम नहीं है कि मोहरा है या जीवित, वो तो उसको खत्म कर देगी, वो जला देगी, एक प्रकार का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो वी डोंट वांट कि वैक्सीन जो आपने ली है उसके जो वायरस है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाए। जिन्होंने वैक्सीन लेना बाकी है, एक दिन क्योंकि मिथिलिन ब्लू का जो वॉश आउट टाइम है बॉडी से वो 12 से 14 घंटे का है, तो मिथिलिन ब्लू का जो लास्ट डोज लिया है उससे कम 14 घंटा ध्यान देना चाहिए बिफोर यू टेक द वैक्सीन शॉट, प्रीफरेबली 24 आवर्स। और वायरस जो है उस वैक्सीन वायरस वो 4 दिन लेगा अपने बॉडी को इम्यून सिस्टम को ट्रेन करने में, आइडेंटिफाई करने में। तो 4 से 5 दिन तक मिथिलिन ब्लू आप मत लीजिए और बाद में फिर चालू कर सकते। थैंक यू सर। जिग्नेश भाई આગળનો સવાલ પૂછો। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई सर कि वैक्सीन के रिगार्डिंग के वैक्सीन हमें लेनी चाहिए, और आप सभी को भी रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन लीजिए, लेकिन उसमें जब आप वैक्सीन लेते हैं तो जब डॉक्टर साहब ने बोला उसी हिसाब से आप बिफोर 1 या 2 डेज और आफ्टर टेक वैक्सीन 5 या 7 डेज आप मिथिलिन ब्लू का सेवन ना कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको आपने ये वैक्सीन के रिगार्डिंग और मिथिलिन ब्लू के रिगार्डिंग आपने बहुत अच्छा कम्युनिकेट किया और बहुत सरल भाषा में आपने उसका गाइडेंस दिया। लेकिन सर एक क्वेश्चन है कि जो डॉक्टर गोलवालकर सर की ट्रीटमेंट है, कि मैं भी एक टाइम में कोरोना पॉजिटिव था और मैंने भी सर की ट्रीटमेंट ली हुई है, तो उसमें जो डेक्सोमेथाजोन जो 4 mg 2 ml वाइल आता है वो भी वन टाइप ऑफ स्टीरॉयड है। और स्टीरॉयड से एक क्वेश्चन मार्क वो होती है कि आज बहुत ये जो म्यूकरमाइकोसिस फंगल का इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, तो ये स्टीरॉयड और म्यूकरमाइकोसिस उसके रिगार्डिंग कोविड-19 का क्या रिलेशन है? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि ये बहुत बहुत एपिडेमिक के स्वरूप में म्यूकरमाइकोसिस सामने आ रहा है। जी सर। लेकिन इसके पहले हम आप के माध्यम से दर्शकों को एक बात ये बता दें कि मिथिलिन ब्लू कैसे प्राप्त करना है और कैसे बनाना है। तो सभी डॉक्टर्स को मेरा ये माहिती देना मेरी फर्ज है कि मिथिलिन ब्लू जो है वो इंजेक्शन के स्वरूप में मिलती है, और इंजेक्शन जो है वो 100 मिलीग्राम का पाउडर जो है 10 ml वाटर में डाइल्यूट करके बनाया जाता है। और ये फार्मा ग्रेड का पाउडर होता है। 3 ग्रेड मिथिलिन ब्लू का होता है, एक फार्मा ग्रेड होता है, एक एनालिटिकल रिएजेंट या लैब रिएजेंट होता है, और एक इंडस्ट्रियल डाई केमिकल। तो इंडस्ट्रियल डाई केमिकल है वो जीन्स के कपड़े को या कॉटन के कपड़े को ब्लू कलर करने के लिए होता है। तो जो इंडस्ट्रियल डाई है उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, नंबर 1, और दूसरा कि उसमें जो एक्टिव मिथिलिन ब्लू है उसका जो प्रमाण है वो 100 ग्राम अगर मिथिलिन ब्लू आप लेंगे तो उसमें से ओनली 72 से 82 ग्राम के बीच में मिथिलिन ब्लू रियल में होगा। बाकी उसमें अजूरबी और इन सम अमाउंट आर्सेनिक, सम अमाउंट निकल, ये थोड़ी हैवी मेटल की इम्प्योरिटी होती है। तो मेरा मानना यह है कि जो कपड़े रंगने की डाई जो है मिथिलिन ब्लू वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, द आइडियल वे टू डू इट इज टेक इंजेक्शन, और एक इंजेक्शन को आप 10 ml का जो इंजेक्शन है उसको 90 मिलीलीटर पानी के अंदर मिक्स कर देंगे तो वो एक राइट प्रोपोर्शन बन जाएगा 0.1%। 0.1% का मतलब है 1 मिलीग्राम ऑफ ड्रग इन 1 ml, क्योंकि इंजेक्शन में 100 मिलीग्राम है और 10 ml में 100 मिलीग्राम। अभी आपने उसके अंदर 90 ml पानी मिला दिया तो अभी 100 ml के अंदर 100 मिलीग्राम हो गया। So that gives you an exact composition of 1 milligram for 1 ml. सॉरी मैं बीच में एक आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है सर? बहुत सारी कंफ्यूजन आ रही थी कि जो 10 ml का एम्प्यूल है
मिथिलिन ब्लू का, उसमें ये भी बात है कि गोलवलकर सर ने बताया था कि 1 लीटर पानी में आप डाल दीजिए। नो ओके, नो नो, नेवर। he never said that. ओके सर, हाँ यही कंफ्यूजन है, कमेंट में भी ये आ रहा है। नहीं, मुंह में छाले पड़ होने की कंप्लेन आ रही थी। 0.01% है, वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो बिल्कुल बेकार है। ओके वो तो सर, पानी ही रहे, खाली ब्लू कलर का पानी रहेगा, दवा नहीं रहेगी। 1 gram in 1 liter. That Yes, is sir. the proportion. So 1 Okay, gram is 1000 milligram in 1000 milliliter. That is 1 gram in 1 liter. ओके सर, इंजेक्शन के अंदर 100 ही मिलीग्राम होता है। अगर आप 100 मिलीग्राम को 1000 मिलीलीटर पानी में अंदर मिलाएंगे तो 1 मिलीलीटर में 0.1 मिलीग्राम ही होगा। वो तो बहुत बहुत कम हो जाएगा। वो जो नीडेड डोज है उससे 10 गुना पतला हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। अच्छा, So 1 injection, if you want to dilute, then you have to dilute 10 injection in 1 liter. ओके, You cannot dilute 1 injection in 1 liter. That will be, वो उससे तो आपकी जीभ भूरी भी नहीं होगी। वो तो बिल्कुल मतलब शर्ट हाथ पे रखेंगे ना तो 2 मिनट में चला जाएगा। पर ml 1 gram is the right. 1 gram in 1 liter. ओके, 1 gram in 1 liter. આપણે જિગ્નેશભાઈ જે આપણે ये ही આપણે જે 1 लीटर 1 gram in 1 liter, या तो ये याद रखिए, या तो 1 मिलीग्राम इन 1 मिली। ओके, ये दो में से एक ही फॉर्मूला याद रखिए, बाकी का सब कंफ्यूजन दूर कर ओके सर, આપણે 1 ગ્રામ પાવડર વાળો છે એમાં ફોકસ કરો। डाइल्यूट इट इन 90 ml 90 मिलीलीटर में 10 ml का एक इंजेक्शन को डाइल्यूट करें। So you, what I usually do is I take 2 injections and I take a Bisleri bottle which is 200 ml। एक मिनरल वाटर की बोतल में लेता हूँ, जो छोटी बोतल आती है, जो शादी में हम कभी जाते हैं रिसेप्शन में या फ्लाइट में जो पीने के लिए देते हैं, वो छोटा 200 ml का बोतल होता है। उसके अंदर आप अगर फोड़ के 2 इंजेक्शन डाल देंगे, ऊपर से थोड़ा पानी निकाल दीजिए ताकि 2 इंजेक्शन का जो फ्लूइड है उसमें समाएगा, तो वो करीब करीब आपको 0.1% मिलेगा। तो दैट इज द राइट कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उसमें से आपने 4 ml जो है वो जीभ के नीचे रख के, पहले के जो वेव था उसमें 2.5 ml से वायरस जो कंट्रोल हो रहा इन लास्ट अगस्त। लेकिन अभी का जो ये डबल म्यूटेंट और हाईली कंटेजियस, उसमें 5 ml इज नॉट सफिशिएंट। 2.5 ml लेने वाले बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। જિગ્નેશભાઈ મોઢામાં છાલા પડવાનો પ્રોબ્લેમ આવે છે એવું ઇન્જેક્શન લેવા વાળા કહે છે। फ्रॉम डॉक्टर वालेरिया काइनो, और उनका जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से 4 ml लेना चाहिए अगर पेशेंट का वजन जो है वो 70 किलो है। मतलब फॉर अ पर्सन हु इज 70 kilograms ऑफ वेट, उसने 4 ml लेना चाहिए। अगर वेट कम है तो थोड़ा डोज कम कर सकते हैं, वेट ज्यादा है तो डोज बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोई 100 किलो का आदमी है तो 6 ml लेना चाहिए। सबके लिए 2.5 ml इज नॉट सफिशिएंट। 100 किलो 110 किलो का आदमी होगा और 2 ml लेगा तो वो नहीं काम करेगी, वो सफिशिएंट नहीं होगी उसकी बॉडी। वेट के हिसाब से भी लेना जरूरी है। Metered according to the body weight and the body mass of the person. So just remember कि 13 किलो वजन है, अगर 70 किलो वजन है तो 4 ml 0.1% मिथिलिन ब्लू आपने लेना फॉर द प्रोफाइलेक्सिस, फॉर प्रिवेंशन। अब जो थेराप्यूटिक पोर्शन है उसमें जो अपर रेस्पिरेटरी कोविड है, जब जिसमें कि वायरस अभी तक लंग्स में बहुत ज्यादा नहीं गई, तो उसमें तो मेरा खुद का एज एन आई सर्जन बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन काफी बार जब मैं फ्री होता हूँ तो डॉक्टर गोलवालकर के पास बैठता हूँ और उनको काम करते हुए मैं ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि उनसे मुझे कुछ न कुछ हर दिन सीखना है। तो हम आई सर्जनों की प्रैक्टिस वैसे भी अभी तो कम है, तो समय मिल जाता है रोज न रोज ऑल्टरनेट डे। तो उनको मैंने जो देखा है, वो देख के मैंने जो मेरे दिमाग के अंदर जो कारण निकाले वो मैं आपको बताऊंगा उनके बिहाफ पे। तो ये जो डॉक्टर गोलवालकर का जो सजेशन है कि वी मस्ट यूज नेबुलाइजर, ये बहुत अच्छी बात है। इससे बहुत सारे फायदे हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ उसके पहले ये स्पष्टता ये कर देना चाहता हूँ कि ये नेबुलाइजेशन करना है, ये भाप नहीं लेनी है, ये नाश नहीं लेना।
क्योंकि मिथिलीन ब्लू कई जो लोग है स्टीम मशीन में ले लेते हैं, तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप उबालेंगे पानी को तो पानी पहले ऊपर भाप होके निकल जाएगा और मिथिलीन ब्लू पीछे रह जाएगा। तो नाश लेने की जो बात है वो तभी काम करती है जब अंदर डाली हुई आपकी जो दवा है उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो पानी के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है। मानो कि आपने इसके अंदर कोई बाम डाला है, या तो इसके अंदर मेंथोल या नीलगिरी का तेल डाला है या तुलसी का तेल डाला है, तो ये वॉलेटाइल ऑयल और ऑल वॉलेटाइल ऑयल्स दे स्टार्ट बॉइलिंग एट टेम्परेचर 60-65 डिग्री। तो पानी से पहले ये उबल जाएंगे तो वो जो है वो बाष्प में ये निकलेंगे। लेकिन मिथिलीन ब्लू के किस्से में क्या होता है कि जब आप उसको बॉईल करेंगे तो मिथिलीन ब्लू तो पीछे रह जाएगी और खाली बाष्प निकलेगी। आप एक एक्सपेरिमेंट करिए कि जब आप नेब्यूलाइजर से ही लेना है। दिनेश भाई, मारो अवाज આવે છે કે? और टिश्यू पेपर अगर भूरा होता है तो समझिए कि मिथिलीन ब्लू आ रहा है, और टिश्यू पेपर खाली भीगा ही होता है और ब्लू नहीं होता है तो समझिए कि खाली पानी उबल रहा है, मिथिलीन ब्लू नहीं उबल रहा है। तो लोग ये बहुत मिस्टेक कर रहे हैं कि मिथिलीन ब्लू की नाश ले रहे हैं। वो 300-400 रुपए की जो मशीन आती है नेब्यूलाइजर से लेना है। तो नाश लेने से मिथिलीन ब्लू नहीं उगेगी, वो पीछे रह जाएगी। सो यू नीड ए नेबुलाइजर। तो नेबुलाइजर जो मशीन है वो 1200 से 1400 रुपए के बीच की कीमत की आती है। वो कंप्रेसर बेस्ड है, वो ठंडी भाप उत्पन्न करती है, गर्म भाप नहीं उत्पन्न करती। इट एक्चुअली कन्वर्ट्स मिथिलीन ब्लू लिक्विड इनटू ए कोल्ड मिस्ट, उसको ठंडा मिस्ट बोलते हैं, तो या तो कोल्ड फॉग बोलते हैं। तो ये जो है वो आपने क्या बोलते हैं नेबुलाइजर इस्तेमाल करना है, वेपोराइजर इस्तेमाल नहीं करना हाँ, कई लोगों को है। जिग्नेश भाई, मारो अवाज આવે છે? 4 ml जितना मिथिलीन ब्लू लेना है, 0.1% सॉल्यूशन जो हमने बनाया, और उसके अंदर 1 ml डेक्सोना डालना है और 1 ml कॉम्बिमिक्स या तो डिओलिन, जो रेस्क्यूल होती है वो एक प्लास्टिक की एम्पूल की तरह होती है, तोड़ के आप उसको अंदर डाल सकते हैं। 1 ml ऑफ कॉम्बिमिक्स या डिओलिन, 1 ml ऑफ डेक्सोना और 4 ml ऑफ मिथिलीन ब्लू। और ये रख के अगर आप नेबुलाइजेशन लेते हैं तो इसके क्या फायदा होता है नेबुलाइजेशन। फिजिकल फायदा नेबुलाइजेशन का ये होता है कि नाक की म्यूकोजा और जो गले की म्यूकोजा है उसको वो पूरी तरह से रंग देती है। जहाँ मतलब ऐसी ऐसी क्रिवाइसिस और क्रिप्स, ऐसे कोने हैं या ऐसे खांचे हैं जहाँ आप दवा को पहुंचा नहीं सकते, वो भाप जो है हर जगह पहुंच जाएगी। तो नाक में भी जाएगी, गले में भी जाएगी, जब आप इनहेल करेंगे तो लंग्स के अंदर भी वो जाएगी दवा। और जो पैरानेजल साइनस मतलब जो अपनी खोपड़ी की हड्डियां हैं उसके अंदर जो कैविटीज होती हैं, जो खाने होते हैं पोले, वो जो ये जो कैविटीज है जिसको साइनस बोलते हैं, वो साइनस तक जाती है। तो जहां जहां भी वायरस मौजूद है हर जगह वो पहुंचेंगी और वायरस को वहां 40 मिनट के अंदर खत्म कर। सो दैट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग नेबुलाइजर। और इनका तो ये कहना है कि नाक में 2 ड्रॉप्स डालने से और मुंह में लेने से भी ज्यादा एवरीडे इवनिंग अगर कोई 4 ml या 5 ml प्लेन मिथिलीन ब्लू विदाउट डेक्सोना विदाउट डिओलिन अगर वो नेबुलाइज लेता है तो वो और भी ज्यादा इफेक्टिव नाक में लेने से, क्योंकि मुंह में जिग्नेश नाक भाई, में लेंगे नेक्स्ट सवाल पहला મને હોલ્ડ આપજો। नहीं जाएगा और खून में जाएगा पूरे शरीर में, लेकिन वो थोड़ा डाइल्यूट होगा। सो नेबुलाइजेशन इज द बेस्ट। अच्छा, मिथिलीन ब्लू की 2 एक्शन या 3 एक्शन, एक तो ये वायरस को खत्म कर देती है, दूसरा वायरस को लेच होने से स्टॉप कर देती है, और तीसरा ये है कि मिथिलीन ब्लू जो है वो खून को जमने से रोकती है। इट इज एंटी प्लेटलेट एजेंट। तो जैसे आप इकोस्प्रिन लेते हैं और खून जम जाता है वो बंद हो जाता है, उसी तरह से ये कोविड में ये एक समस्या है, ये है कि जो कोविड वायरस है वो जब मर जाता है तो उसके बाद का डेड वायरल प्रोटीन्स जो है, वो डेड वायरल प्रोटीन जो है उसको रिमूव करने के लिए हमारे जो है श्वेत कण जिसको लिम्फोसाइट बोलते हैं, वो लिम्फोसाइट आ जाते हैं। और लिम्फोसाइट जो है वो स्कैवेंजर सेल है। जैसे कि कोई महामारी हुई और बहुत सारे
मरे हुए पशु पड़े हैं तो उसको ले जाने के लिए एक अपना टास्क फोर्स होता है। तो ये अपने जो लिम्फोसाइट्स है वो वायरस को खत्म करने का भी टास्क करते हैं और खत्म हुए वायरस को निगल के उसको डिसॉल्व करने का भी टास्क करते हैं। तो जो लिम्फोसाइट है वो एक लिम्फोसाइट जो है वो 70 से 80 हजार वायरस को खत्म कर देगा, मतलब उसको एब्सॉर्ब कर लेगा, फिर वो खुद मर जाएगा। जब वो मरता है, वो सेल जो फटता है, तो उसके अंदर से ये पिघले हुए जो मरे वायरस है वो भी निकलते हैं और सेल की खुद की जो केमिकल्स है, केमिस्ट्री की साइटोप्लाज्म है, वो भी निकलती है। तो ये सब जो केमिकल्स निकलते हैं मरे हुए डब्ल्यू लिम्फोसाइट से, और आप रिपोर्ट देखेंगे जब कोविड के पेशेंट की, तो नॉर्मल जो लिम्फोसाइट होते हैं 24-25 के आसपास होते हैं ब्लड के, डब्ल्यूबीसी जब डिफरेंशियल काउंट आप देखेंगे तो उसके जगह लिम्फोसाइट आपको 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, 4 मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लिम्फोसाइट जो है मर चुके। तो ये जो मरे हुए लिम्फोसाइट्स है, मैक्रोफेजेस है, उसमें से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, इंटरल्यूकिन 6 है और TNF अल्फा है और इन्फ्लेमेसोन से 5-6 प्रकार के साइटोकाइंस, ये जो केमिकल्स निकलते हैं उसको साइटोकाइंस बोलते हैं। साइटो मतलब सेल और काइन मतलब उसके अंदर से निकलने वाली केमिकल। तो ये साइटोकाइन जो है वो साइटोकाइन स्टॉर्म को इंड्यूस करता है। तो जब वायरस मर जाते हैं उसके तुरंत ही बाद में साइटोकाइन स्टॉर्म होना शुरू होता है। जैसे ही साइटोकाइन स्टॉर्म शुरू होता है लंग्स में पानी भर जाना शुरू होता है। लंग्स में अगर एक बार पानी भर गया तो उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करके उनमें पहुंचाने की जो कैपेसिटी है लंग्स की खत्म हो जाती है। ऐसे ही समझ लीजिए कोई आदमी जो है वो पानी के अंदर डूब गया है, पानी पी गए, उसके लंग्स में पानी भर गया और अब वो बाहर निकालेंगे, बहुत कोशिश करेंगे, तो भी जब तक उसके लंग्स पानी से सूखते नहीं वो काम नहीं करेंगे। नॉर्मली लंग्स का जो वजन होता है वो 400 ग्राम होता है एक लंग का, और पोस्टमार्टम में ये पाया गया है कि कोविड पेशेंट का जो लंग्स है उसका जो वजन है वो 2.5 किलो हो जाता है पानी भरने। तो जो 400 ग्राम की जो स्पॉन्ज जैसी छिद्र छिद्र वाली जो अपने लंग्स है वो पानी भर जाने की वजह से पत्थर जैसी हो जाती है। और कोविड की जो सिक्रीशन है वो आप समझ लीजिए फेविकोल जैसी ठीक, ये इतनी ठीक है कि पेशेंट चाहे कितनी भी खांसी करने की कोशिश करे तो भी वो निकलती नहीं, बिकॉज इट इज समथिंग एज इफ जो नॉर्मल आपको खांसी जुकाम होगा तो जो सिक्रीशन होती है वो पतली होती है और 3-4 दिन में वो पीली होकर पक जाती है और फिर हम उसको उधरस कट करके निकाल सकते हैं, जिसको हम बलगम बोलते हैं, कड़फा बोलते हैं गुजराती में, कफ हिंदी में कफ बोलते हैं या बलगम बोलते हैं, बलगम। तो इसमें बलगम निकलता ही नहीं है क्योंकि वो फेविकॉल की तरह लंग्स के अंदर चिपक गया। तो ये बलगम जो है जो फेविकॉल की तरह चिपक गया, किसी और दवा से वो नहीं टूटेगा, वो सिर्फ मिथिलिन ब्लू और 3% हाइपरटोनिक सलाइन, ये दोनों से ही वो मेल्ट होगा, वरना वो मेल्ट ही नहीं। और पेशेंट सोडियम क्लोराइड। बहुत तकलीफ हो जा रही है क्योंकि लंग्स अगर खाली नहीं होते हैं तो ऑक्सीजन कितना भी आप देते जाएंगे लेकिन ब्लड में पहुंचेगा नहीं और SpO2 उसका कम ही होता जाएगा धीरे धीरे। तो मिथिलिन ब्लू का जो नेबुलाइजेशन है उसमें जो मिथिलिन ब्लू है वो 2 काम करती है। एक काम ये करती है कि वो वायरस को मारती है, दूसरा काम ये करती है मरे हुए वायरस से आने वाला साइटोकाइन स्टॉर्म है उसको कुछ हद तक कंट्रोल करती है और तीसरा ये फाइब्रोसिस अटकाती है लंग में। तो लंग में जो जम गई हुई जो सिक्रीशन है कोविड बहुत स्टिकी है, उसको डिसॉल्व करने में उस मिथिलिन ब्लू से मदद होती है। और डेक्सोना इसलिए यूज करना है कि जो साइटोकाइन स्टॉर्म है उसकी वजह से लंग की जो अंदर की नलियां है उसमें सूजन आ जाती है। और आपको आश्चर्य होगा कि लंग के अंदर जो हवा ले जाने की नलियां है उसका डायमीटर जो है वो 4 माइक्रोन, और जब उसमें सूजन आती है तो वो 4 माइक्रोन में सूजन आ गई तो पूरी ब्लॉक हो गई। तो जब एक बार ब्लॉक हो गई फिर आप कितना भी प्रेशर से वेंटिलेटर से भी ऑक्सीजन डालेंगे लेकिन वो जाएगा ही नहीं क्योंकि ब्लॉक हो। तो डेक्सोना टू बी स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल वो इसलिए है कि लंग्स की जो नलियां हैं वो इन्फ्लेमेशन होके ब्लॉक ना हो।
और ये आप ये समझ लीजिए कि जो डेक्सोना है वो एक प्रकार का फायर को डाउज करने का वो अग्निशामक केमिकल है, ऐसा ही समझ लीजिए। इन्फ्लेमेशन शब्द जो है उसको अगर आप तोड़ दें तो पता चलेगा वो लैटिन शब्द है इन्फ्लेमेशन, मतलब इन और फ्लेम। तो आपके लंग्स के अंदर, आपके शरीर के अंदर एक आग लगनी चालू होगी, इन एंड फ्लेम, इन्फ्लेमेशन। तो ये समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर आग लगनी चालू हो गई और कारपेट जलने लगी। जब कारपेट जलने लगी है तब अगर 2 बाल्टी 3 बाल्टी पानी आप घर में डाल देंगे तो फायर वहीं पे वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर वो कारपेट जलती है तब आप देखते रहें और वो कारपेट जलते जलते फिर अगर सीलिंग तक पहुंच गई और पूरा घर जलने लगा, ये अमेरिकन उपमा है, वहां सब लकड़ी के हाउस होते हैं। तो इफ द कारपेट स्टार्ट्स बर्निंग यू कैन डाउस दैट फायर एट होम, बट अगर वो पूरे घर को अगर जलाने लगे तो देन यू विल नीड डेफिनेटली नीड द फायर। फायर ब्रिगेड का मतलब ये हुआ कि आपने ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बाइपेप, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमाब सब लेना। अगर आपने डेक्सोना को फ्रॉम डे 1 या डे 2 से शुरू कर दिया 3 दिन या 4 दिन के लिए इस्तेमाल तो ये फायर जो है वो रेमडेसिविर या टोसिलिजुमाब के स्टेज से जाने से पहले ही अटक जाएगी। सो दैट्स द रीजन व्हाई वी नीड डेक्सोना। और जो आप बोल रहे थे डेक्सोना की वजह से म्यूकोरमाइकोसिस होने की स्टीरॉइड स्टीरॉइड की वजह से म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावना। तो जो मिथिलिन ब्लू है वो म्यूकोरमाइकोसिस के जो स्पोर्स है उसको भी मार देती है। तो इट इज फंगिसाइडल, इट इज वायरिसाइडल एंड इट इज बैक्टीरियासाइडल। एंटीबायोटिक। सो इट वर्क्स, ये वायरस को भी मारती है, ये बैक्टीरिया को भी मारती है, वायरस और फंगस को भी मारती है। ये की दवा ऐसी है ना तो आपने एंटीबायोटिक की जरूरत पड़े, ना एंटी फंगल की जरूरत पड़े, ना एंटीवायरल की जरूरत पड़े, एक ही चीज में सब तीनों काम हो जाते हैं। So if a patient starts nebulizing himself well overly 2 times a day, 4 ml methylene, 1 ml Dexona और 1 ml Duolin, तो चांसेस उसके 99.99% है कि वो आगे डिजीज बढ़ेगा ही नहीं, ना तो उसको आईसीयू का स्टेज आएगा और ना ही उसको। જિગ્નેશભાઈ નેક્સ્ટ સવાલ પહેલા મને થોડું ગુજરાતીમાં બ્રીફ કરવા દેજો। दूसरा जो है मिथिलिन ब्लू है वो आप समझिए वो ऑक्सीजन का एक लिक्विड स्वरूप। ये ब्लड के अंदर जो मीथीमोग्लोबिनीमिया होता है एक कंडीशन, मीथीमोग्लोबिनीमिया को रिवर्स कर, ये इतनी पावरफुल है। पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम नाइट्राइट और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 3 दुनिया में सबसे ज्यादा हलाल से हलाल विष है। और सबसे ज्यादा जो ये हलाल विष है उसकी एंटीडोट है मिथिलिन ब्लू। क्या तो बात है। साइनाइड पॉइजन को कोई और चीज दुनिया में नहीं है जो मार सकती है। साइनाइड पॉइजन आदमी को मार ही देती है, लेकिन अगर मिथिलिन ब्लू टाइम से उसको मिल गई तो वो मरने से बच जाएगा। तो मिथिलिन ब्लू इज दी एंड ओनली एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग, पोटेशियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड, पोटेशियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये हाइपोक्सिया को इतना एफिकेसी से रिवर्स करती है कि हाई ऑल्टीट्यूडिनल हाइपोक्सीमिया जो होता है, मतलब अगर कोई पर्वतारोहक जो 18,000 फुट से ऊपर की ऊंचाई पे पर्वतारोहण कर रहा है जहाँ की ऑक्सीजन बहुत पतली हो जाती है, ग्राउंड लेवल पे 21% है वातावरण में, लेकिन जब आप 18,000 से ऊपर अगर एवरेस्ट को चढ़ रहे हैं, कांचनजंगा चढ़ रहे हैं, तो वहाँ जो ऑक्सीजन है वो 18%, फिर जैसे ऊपर जाते हैं 12% हो जाते हैं, मानसरोवर में 10%। और तो ये लोग जो माउंटेनियरिंग में हाई अल्टीट्यूड में जाते हैं 18,000 फीट के ऊपर, वो मिथिलिन ब्लू साथ में लेके जाते हैं टैबलेट्स। इंडिया में अवेलेबल नहीं है बट फॉरेन में टैबलेट लेके जा रहे हैं, टैबलेट रोज लेते हैं ताकि वो क्रॉनिक हाइपोक्सिया और हैप्पी हाइपोक्सिया के शिकार होकर वहां मर जाए। So methylene blue is a drug for altitudinal sickness. It is an antidote for carbon monoxide poisoning, also antidote for cyanide and nitrate poisoning. और ये 4 जो पॉइजन हमने बोल रहा हूँ उसमें जो कंडीशन हो रही है मीथीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीमोग्लोबिन है खून के अंदर हमारा, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, उसकी जगह वो मेथिलेटेड हो जाता है, मतलब मीथीमोग्लोबिन। જિગ્નેશભાઈ મ્યુકોરમાઇકોસિસ અને ફૂગનો પ્રશ્ન સાહેબને લ્યો। ब्लड लेके पहुंचा ही नहीं पाएगा क्योंकि जो आपकी ट्रांसपोर्ट चेन है वो ट्रांसपोर्ट चेन ही बंद हो गई बिकॉज ऑफ मीथीमोग्लोबिन। तो मिथिलिन ब्लू हैज अनदर एक्शन
in which it converts methemoglobin back into oxygen. So मीथीमोग्लोबिनीमिया जब होता है तो एक फंक्शनल एनीमिया नाम की एक कंडीशन होती है, मतलब आपका हीमोग्लोबिन 14 बताएगा, 14 ग्राम पर, लेकिन वर्किंग हीमोग्लोबिन इज ओनली 5 या 6 ग्राम पर। तो 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होने के बावजूद भी आप 5 ग्राम 6 ग्राम पे चल रहे हैं। तो इतना एनीमिक पेशेंट को जितनी वीकनेस लगती है, इतने एनीमिक पेशेंट को जितना हाइपोक्सिया लगता है, उतना ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ये पेशेंट को फील होता है। दैट इज व्हाट हैपेंस इन कोविड, बिकॉज द कोविड वायरस इज वेरी हंग्री फॉर ऑक्सीजन। तो ये वायरस जब ब्लड में जाता है तो वो ऑक्सीमोग्लोबिन को खा जाता है, ऑक्सीमोग्लोबिन को खा के मीथोमोग्लोबिन में कन्वर्ट करके फेंक देता है। So the patient's blood is converted from oxyhemoglobin to methemoglobin, and methylene is the only drug which can reverse methemoglobin into oxyhemoglobin. दो ही चीज है, या तो आप इस पेशेंट को नया ब्लड चढ़वाइए, या तो 120 दिन लगेंगे मीथेमोग्लोबिन वाले जो सेल्स वो मरेंगे और नए उत्पादन 4 महीने लगेंगे, और मिथिलीन ब्लू जो है वो 4 घंटे में ये रिवर्स करता है। तो मिथिलीन ब्लू has multiple activity of 9 different actions by level in COVID-19। और ये जो मैं बोल रहा हूँ मेरे खुद की नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो 140 साल से पब्लिश हुए। First paper on methylene blue was published in 1893 in Lancet, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित साइंटिफिक जर्नल है, लैंसेट। वो लैंसेट में 30 सितंबर 1893 જિગ્નેશભાઈ મ્યુકર માઇકોસિસ નો સવાલ લઈ લ્યો જે બહુ મહત્વપૂર્ણ છે। लेके आज तक में 52,000 से ज्यादा पेपर पब्लिश हुए, 1 करोड़ से ज्यादा क्रॉस रेफरेंसेस। आप पढ़ने लगेंगे मिथिलीन ब्लू के बारे में, अगर कोई पढ़ता है तो एक जिंदगी कम पड़ेगी। इतना रिसर्च एक आदमी एक जिंदगी पूरी अगर पढ़ता है तो भी मिथिलीन ब्लू के बारे में आप पर्याप्त मात्रा में पढ़ नहीं पाएंगे। दैट मच लिटरेचर, और ये सब फ्री है, लेकिन आप पढ़िए। જિગ્નેશભાઈ મારો અવાજ આવે છે કે નહીં એકવાર ક્લિયર નોટિફિકેશન આપો એમ કહું છું। पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये एक मिरेक्युलस दवा है, और अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया गया और अर्ली स्टेज में किया गया, पहले 3 दिन या 4 दिन तक, तो हर हाल में आपका पेशेंट जो है वो आईसीयू और वेंटिलेटर से जाने से बच। थैंक यू सो मच सर। જિગ્નેશભાઈ મારો અવાજ આવે છે? सर, इतनी अच्छी गाइडेंस आपने, खासकर बहुत ऐसी गाइडेंस थी कि जो आम म्यूकर माइकोसिस बाबते पूछो, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स लोग हैं जो उसको भी तो पता होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ आपने भी बहुत बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की। और सर एक मेन टॉपिक तो साथ में ये आता है कि अभी सर आफ्टर कोविड जो म्यूकोरमाइकोसिस डिसीज होती है सर, तो उसके रिगार्डिंग सर बहुत डेंजरस है, बिकॉज ऑफ के ऐसा मानना है कि कुएं में से बच गए तो खाई में चले गए। तो अभी ऐसा हो रहा है कि राजकोट में, हमारे यहाँ सौराष्ट्र में देखे तो राजकोट में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में, भावनगर में, सूरत में, सभी जगह पे म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस बढ़ रहे हैं। तो सर एक आप हमें एज ए ऑप्थेलॉजिस्ट है सर, तो उसकी मेजर इफेक्ट माउथ और आईज में उसकी मेजर मैक्सिमम इफेक्ट होती है सर। तो आप ये हमें बताइए कि म्यूकोरमाइकोसिस फंगल डेवलप कैसे होती है, वो होने का स्पेसिफिक कोविड पेशेंट में क्यों होती है और कैसे होती है सर? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि ये माहिती सबके लिए आजकल के सिनेरियो में बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स के मैंने इंटरव्यूज भी देखे टीवीज में, लाइव मीडिया चैनल्स में, लेकिन सभी जगह पे कोई ये क्वेश्चन नहीं आता है कि म्यूकोरमाइकोसिस होता कैसे है। 2-3 डॉक्टर्स, अहमदाबाद का एक इंटरव्यू था, डॉक्टर साहब थे, नाम मैं उसका भूल गया, और एक राजकोट के डॉक्टर साहब थे, उन्होंने ही परफेक्टली बताया कि उसका रीजन क्या है। तो एक आप वो इंटरव्यू सब लोगों ने नहीं देखा होगा, तो एक आप भी हमें कृपा करके बताइए कि ये होने का रीजन क्या है स्पेसिफिकली कोविड पेशेंट में। उसके पहले म्यूकोरमाइकोसिस पे आने से पहले मैं एक और दूसरी बात बताना चाहूंगा, जो कि हमने डॉक्टर गोलवालकर से सीखी, और ये बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट बात है। जो आदमी कोविड से निकल के आ जाता है बच के, उसके लिए 2 और कॉम्प्लिकेशंस आगे खड़े हो, मुंह खोल के।
उसको निकल जाने के लिए। मतलब आप जो है वो सिंह के मुंह से बच के निकल गए और अब मगर मुंह खोल के सामने खड़ा है। तो ये एक तो मगर जो है वो म्यूकोरमाइकोसिस है, दूसरा जो मगर है वो क्या है, वो है लंग फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल लंग फाइब्रोसिस। तो इंटरस्टिशियल लंग फाइब्रोसिस क्या होता है, जितने लंग्स के एरिया में आपको निमोनिया हुआ है, ग्राउंड ग्लास ओपन या एक्सरे, उतना जो एरिया है लंग्स का वो आप जब बच जाएंगे उसके बाद में 2 महीने 3 महीने तक उसमें फाइब्रोसिस होकर स्कारिंग हो जाएगी। मतलब वो जो लंग्स है वो हमेशा के लिए इतना एरिया जो पत्थर के जैसे हो जाए। तो मानो कि किसी को 10 का स्कोर है 25 में, सर मेरा 25 में से, सॉरी, मेरा 25 में से 15 का स्कोर था। हाँ, so that means it is 60% लंग, यस 60%। 60%, क्योंकि 25 को आपने 100 ले जाए तो 4 से गुना कर, तो 25 गुना 4 मतलब 100 हुआ। और अगर आपका 15 है तो उसको भी 4 से गुनेंगे आप, तो गुणाकार करेंगे तो 60 हो जाएगा। सो 15/25 actually means 60%. So your Okay. 60% lungs were damaged. अगर आपने मिथिलिन ब्लू का इनहेलेशन नहीं लिया होता तो वो जो 60% एरिया आपका जो था लंग्स का वो पत्थर बनते रहते। अब आप 40% लंग्स के ऊपर बाकी की जिंदगी गुजारें। इसमें 2 कॉम्प्लिकेशन है। आप दादर के 5 स्टेप चढ़ेंगे तो अटक जाना पड़ेगा, 5 या 6 स्टेप एक साथ नहीं चढ़ पाएंगे, हाइपोक्सिया फील होने लगेगा, आप जाएंगे और बहुत सांस फूल जाएगी, फिर आप 5-10 मिनट वहाँ आराम करेंगे, बाकी के स्टेप जो है बाद में दे पाएंगे। बैडमिंटन छोड़ देना पड़ेगा, स्विमिंग छोड़ देना पड़ेगा, जॉगिंग छोड़ देना पड़ेगा, सब चीजें चली जाएगी जिंदगी से। तो लाइफस्टाइल जो है, जिसको भी फाइब्रोसिस हो गया वो बहुत लिमिटेड होता है। काफी लोग मैंने देखा है जिनको ऑक्सीजन घर पे रखनी पड़ेगी, ऑक्सीजन बाकी की लाइफ पास करने की। तो हर हाल में हमने anything more than 10% lung damage is restrictive to the life, वो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को उतना कम करेगी और लाइफ स्पान को भी कम करेगी, क्योंकि जो एरिया फाइब्रोस हो चुका है उसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे अगर हवा में से, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है फ्यूचर में, लाइफ में, क्योंकि जो फाइब्रोस एरिया है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, तो अपनी डिफेंस वहां पहुंच नहीं पाएगी। व्हाइट ब्लड सेल वहां पहुंचेंगे बैक्टीरिया को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो वहां बारी बारी इन्फेक्शन होता रहेगा। तो वी हैव टू प्रिवेंट द लंग फाइब्रोसिस एट एनी कॉस्ट। फाइब्रोसिस का दूसरा एक डिसएडवांटेज अभी मेरे सामने दिखने को बहुत सारे, जब आपने अमेरिका जाना है या आपने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या न्यूजीलैंड या यूके में जाना है शिफ्ट, तो पीआर के लिए ये लोग चेस्ट का एक्सरे वीजा देने से पहले, और अगर चेस्ट एक्सरे में 10% से ज्यादा फाइब्रोसिस आया तो उसको किसी भी हाल में ना तो ग्रीन कार्ड मिलेगा, ना तो पीआर मिलेगा, ना तो टूरिस्ट वीजा मिलेगा। तो anybody more than 10% lung fibrosis is a danger to the healthcare system even after allowing them into that country, so they don't allow. तो किसी भी हाल में हमने फाइब्रोसिस को प्रिवेंट करना। फाइब्रोसिस को प्रिवेंट करने के लिए मिथिलिन ब्लू से अच्छी कोई और दवा नहीं। तो these patients who have recovered from COVID, they should continue plain मिथिलिन ब्लू nebulization for 3 months to prevent the lung fibrosis. After recovering, after becoming negative, वो नेगेटिव एक बार आ गए आप तो फिर डेक्सोना डालने की जरूरत नहीं है, कॉम्बिनेस डालने की जरूरत नहीं, वो तो पहले इमीडिएट रिस्पॉन्स इफेक्ट के लिए, फायर को काम डाउन करने के लिए। बट बाद का जो फाइब्रोसिस है उसको अटकाने के लिए ये करना है। मिथिलिन ब्लू का प्लेन 4 ml, मिथिलिन ब्लू 5 ml का रोज एक बार नेबुलाइजेशन ले लीजिए 3 महीने तक, 100 दिन गिन लीजिए। तो ये तो बात हो गई फाइब्रोसिस प्रिवेंशन की। अच्छा, अभी म्यूकोरमाइकोसिस पे आते हैं। तो म्यूकोरमाइकोसिस जो है, म्यूकोरमाइसेट इंडिकस नाम की एक फंगस, और ये फंगस जो है हमारे पूरे देश में हर जगह पे फैली हुई है। इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं, और इसके जो पोर्स है, इसके जो शुक्राणु है, ये पूरे हवा में फैले होते हैं। अगर आप ब्रेड को घर में खुली रख देंगे तो 3 दिन के बाद वो काली होने लगेगी। तो काली फूग है पेंडे पे या ब्रेड पे
जो काली फंगस होती है, मानो कि स्ट्रॉबेरी है या आपकी जो मैंगोस है, अगर वो सड़ गई तो उसके ऊपर आपको ब्लैक फंगस ग्रो होने की दिखने लगेगी। काफी बार वॉश बेसिन में ब्लैक फंगस होती है अगर कोई रेगुलर साफ नहीं करता है। पानी के नल जो है उसके ऊपर आपने एक कपड़े की अगर वो छोटी सी थैली बना के लगाई है पानी को गलने के लिए, तो काफी गुजराती फैमिली वो करते हैं। आप देखेंगे कि उसके ऊपर भी काले काले धब्बे होने लगते हैं, तो दैट इज ब्लैक फंगस। अगर केले बहुत पक जाते हैं तो काले छींटे हो जाते हैं, लगते हैं पीले जो गोल्डन कलर के केले हैं, और 10 दिन के बाद आप देख पाएंगे कि उसमें भी ब्लैक फंगस डेवलप होती है, केले के ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट्स। तो ये ब्लैक फंगस, इसके स्पोर जो है हर जगह पे होते रहते हैं। अब जो ऑक्सीजन प्लांट्स है उसमें जब ऑक्सीजन कंप्रेस करके भरते हैं सिलेंडर, तो ये ब्लैक फंगस के जो स्पोर है वो ऑक्सीजन के अंदर भी चले जाते हैं, और कितना भी फिल्टर करते हैं फिर भी कुछ ना कुछ मात्रा में वो अंदर जाते हैं। और जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए जीवन है, उसी तरह ये फंगस के लिए भी ऑक्सीजन जो है वो जीवन है। तो वो सिलेंडर के अंदर जो स्पोर्स है वो जब आपने लंबे समय से ऑक्सीजन किसी को दी पे, तो जहां जहां ऑक्सीजन पहुंची इस शरीर में, वहां हर जगह पे ये फंगस की स्पोर्स जो है वो भी पहुंचे। तो व्हेन यू गिव हाई प्रेशर ऑक्सीजन फॉर 15 days 10 days टू द पेशेंट, और ये पेशेंट जो है वो डायबिटिक और इम्यूनोसप्रेशन के ऊपर है, क्योंकि साइटोकाइन स्टॉर्म को किल करने के लिए रेमडेसिविर और टोस्लिजुमाब नामक इम्यूनोसप्रेशन ड्रग दी हुई है। तो क्योंकि आपकी इम्यूनिटी हाइपर रिएक्ट कर रही थी कोविड में, इसको साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म को कंट्रोल करने के लिए आपने इम्यून सिस्टम को डाउन रेगुलेट, तो यू डोंट हैव एनी व्हाइट ब्लड सेल, आपके जितने व्हाइट ब्लड सेल है जो फंगस के सामने लड़ने के लिए अभी है नहीं, क्योंकि खत्म हो गए लिम्फोसाइट सब, तो वायरस से लड़ते, और नए बनेंगे 1 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद, तब तक तो आपको कमजोरी है शरीर के अंदर, खून भी आपका कमजोर हो गया है ऑक्सीजन ग्लोबिन से भी कमजोर। तो ये जो फंगल स्पोर है जो ऑक्सीजन के साथ सब जगह पे लॉज हो गए, उसके सामने फाइट करने के लिए आपकी इम्यून सिस्टम है नहीं, क्योंकि आपका लश्कर तो खत्म हो गया है। थोड़ा बहुत जो लश्कर बचा हुआ था उसको आपने दबा दिया है इम्यूनोसप्रेशन ड्रग देके, और आपकी जो शुगर है वो बढ़ रही है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। डायबिटिक जो पेशेंट है उसका शुगर कोविड के बाद, थोड़ा बहुत जो पैंक्रियास काम कर रहा था, थोड़ा बहुत इंसुलिन सिक्रीशन हो रहा है, वो भी कम हो गया है कोविड इन्फेक्शन के, क्योंकि पैंक्रियास में भी इडिमा था, लीवर में भी इडिमा, पूरी आंख जो है उसमें भी इडिमा होता है। सो a patient who was reasonably well controlled diabetic becomes a poorly controlled diabetic after the COVID. इनकी शुगर हो 200 300 200 300 के आसपास रहेगी, और कमजोर इतनी है कि जब घर जाएंगे कोविड से आके तो उसको सब मिठाई वाली चीजें चीरा बना के खिलाएंगी, राब बना के खिलाएंगी, घर की जो मम्मी और दादा को सब कुछ खिलाएंगे, खिला के शुगर बढ़ा दे 300 400 हो गई। तो फंगस को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, डिफेंस की गैरहाजिरी है, और जितनी चाहिए ऑक्सीजन मिल गई है उसको ग्रो होने के लिए, और जितनी चाहिए शुगर मिल गई है। तो जब शुगर मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, फंगस जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपकी जो नाक और पेरानेजल साइनस है उसमें वो फंगस ग्रो होना चालू है। ये फंगस इतनी खतरनाक है कि वो बोन में ग्रो हो सकती है। आपके साइनस के अंदर ग्रो हुई, फिर बोन में ग्रो हुई, बोन से ग्रोथ होके पास होके आईबॉल जो है उसके पीछे भी ग्रो होना चालू है। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जो मॉनसून में हम गुजराती में जो बिलाड़ी का टोप बोलते हैं, बिल्ली का टोप, वो बिल्ली का जो टोप है वो काली फंगस जो है, या वो आपके शरीर के अंदर ही बिल्ली का टोप उत्पादन डेवलप हो गया। और आईबॉल के पीछे जब डेवलप होता है तो आईबॉल को आगे धकाता है, आईबॉल आगे आ जाता है तो पीछे जो बिल्ली का टोप है वो पहले तो नजर को खत्म कर देगी, क्योंकि वो खा जाएगी जो अपनी ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व और ब्रेन के बीच का कम्युनिकेशन कट हो, तो विजन चली गई, आंख बंद हो जाएगी और घूमना फिरना बंद हो जाएगा आईबॉल का, क्योंकि ऑल द नर्व्स आर डेड। एंड देन इफ यू डोंट रिमूव द आईबॉल, the fungus will start growing back into the brain.
तो म्यूकोरमाइकोसिस वाले जो पेशेंट है, अगर समय सर आंख को रिमूव नहीं कर दिया और वो फंगस को खुरेद के वहां से निकाल नहीं लिया, तो वो पीछे ब्रेन में ग्रो हो। और इसको अटकाने के लिए एम्फोटेरिसिन बी नाम की इंजेक्शन, ये एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन सुबह शाम 2 बार लेना पड़ता है, कभी कभी 3 बार लेना, 45 से 50 दिन तक लेना, मतलब 100 इंजेक्शन का कोर्स होगा। ये कोर्स खाली 5 से 7 लाख रुपए। तो आप कोविड में से 1-1.5 लाख रुपए में आईसीयू में बच के निकल आए, और फिर आपने 7-8 लाख की तैयारी रखनी म्यूकोरमाइकोसिस को कंट्रोल करने की। नहीं किया तो गुजर जाए, हर हाल में वो मर जाए। એને રોકવા માટે શું કરીએ કે જિગ્નેશભાઈ એ એક શોર્ટમાં પૂછો. Because of high oxygen, high blood sugar, and the lodgement of the fungal spores in the paranasal sinuses, and because there is no lymphocytes to fight against, ये वजह से हो रही है। और खास करके डायबिटिक्स हो रही है, और खास वजह से जो लोग को घर ले जाने के बाद बहुत शुगर वाली चीजें खिलाने लगते, तो ज्यादा ग्लूकोज वाली चीज खाना नहीं चाहिए 4 महीने। कोई भी स्वीट चीज अगर आपने खाई तो आपको म्यूकोरमाइकोसिस बहुत ज्यादा। सॉरी, ओके ओके सर, यू कंटिन्यू योर कमेंट। ओके ओके, नो इश्यू सर. જિગ્નેશભાઈ હા, મારો ભાઈ. અવાજ આવે છે કે નહીં? મારો અવાજ આવે આપનો છે? અવાજ બહુ ઓછો આવે છે. પણ જિગ્નેશભાઈ સાહેબ ને પેલા તો કેવો ઓલા હિંચકા ઉપર છે ને આવી રીતને હેલો, વોઇસ ડિસ્ટર્બન્સ બહુ થાય છે. બહુ સારી અગત્યની માહિતી છે પણ લોકોની જે કોમેન્ટ આવે છે ને અવાજ નથી આવતો. અવાજ બહુ ઓછો આવે છે. હા પણ એ બધું સેટિંગ બરોબર પ્રોપર ડિસ્કનેક્ટ રાખો, કરીને કારણ કે પાછો આ કરો પ્લીઝ. ના ના હવે નો કરો, હવે ડિસ્કનેક્ટ થયું તો પછી પાછું પૂરું પાછા થઈ લાઈવ ગયું. થાય છે. હું ડિસ્કનેક્ટ કરું છું. નહીં હવે ડિસ્કનેક્ટ કરશો તો લાઈવ નહીં થાય એમ કહું છું. ડિસ્કનેક્ટ ના કરો. ઓકે. જિગ્નેશભાઈ સાહેબને Okay. ખાલી એટલું આનું શોર્ટમાં પૂછો કે જે સીધી આપણને સમજાય. મ્યુકોરમાઇકોસિસ ની અંદર આપણે શું સાવચેતી રાખવી જોઈએ? એ ડોક્ટરી લેંગ્વેજમાં ડોક્ટરો તો સમજશે, પણ આપણે સામાન્ય માણસને સીધું જ સમજવું છે. ઈ કયો આજે જેટલું હું સમજો છું ને આના માટે મારે ફરીવાર કાલે લાઈવ કરવું પડશે, અને જે માહિતી શોર્ટમાં અને આપણી દેશી ભાષામાં જેને સમજાય ને એવી રીતે સમજાવવી પડશે. એટલે આના માટે આ હિન્દીમાં તો એટલા માટે કીધું કે આ બીજા રાજ્યના જેટલા સવાલો આવે છે અન્ય જગ્યાએથી, ઓકે. એ લોકોને ન સમજાતું હોય એટલા માટે આ લાઈવ ડોક્ટર સાહેબ કરે છે એટલે હિન્દીમાં કર્યું છે. પણ આપણા અમુક લોકોને હિન્દીમાં તકલીફ પડે છે. પણ જો કે વાંધો નહીં, એને હું ગુજરાતીમાં કાલે સમજાવી દઈશ, દેશી ગુજરાતીમાં. ઓકે પણ આ હિન્દીમાં જેને ન સમજાતું હોય એની કોમેન્ટ ન કરે. ઓકે ઓકે. અને हिंचको प्लीज हिंचकाने स्थिर રાખજો. का जो फंगस ग्रोथ, म्यूकोरमाइकोसिस फंगस को मिथिलिन ब्लू मार देती। So if a patient continues the nebulization of 4 ml plain मिथिलिन ब्लू 1%, for 3 to 4 months after recovering from COVID, तो कोविड में से बाहर आ जाने के बाद अगर 4-5 ml की कोल्ड नेबुलाइजेशन कोई आदमी लेता है 3-4 महीने तक, तो उसको 2 फायदे होते हैं। एक तो उसके लंग्स में फाइब्रोसिस नहीं होगा, और दूसरा उसको म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होगा, क्योंकि जहां जहां म्यूकोरमाइकोसिस के स्पोर्स पहुंचे हैं वो हर जगह पे जो नेबुलाइजर मशीन और कंप्रेस्ड एयर से वो हर जगह पे मिथिलिन ब्लू की छोटी छोटी जो बूंदे हैं उसके अणु को वहां पहुंचाएंगी, तो मिथिलिन ब्लू विल किल those spores. So methylene blue nebulization up to 3 to 4 months after cold recovery is very very important for both the reasons: to prevent fibrosis in the lung and to prevent mucormycosis from the paranasal sinus and from the retroorbital space. तो तीसरा ये काम ये करती है कि ये ब्लड को कोगुलेट होने से अटकाती है। दैट इज द थर्ड कॉम्प्लिकेशन। आप में से निकल गए और एंटीकोगुलेशन अगर चालू नहीं किया तो 3 महीने तक में कभी भी आपका जो खून है वो कैचअप हो जाएगा, टोमेटो कैचअप जैसा बन जाएगा, इतना ठीक हो जाएगा कि माइक्रोएम्बोलाइट फॉर्म होके खून की नलियों के अंदर ही खून जम जाएगा और वहां अटक जाएगा। बहुत सारे लोगों की आंख की जो है रोशनी है रेटिना की वो चली जाती है, क्योंकि बहुत पतली नसें होती हैं आंख के अंदर रेटिना में। खून जम गया तो 3 मिनट में रोशनी चालू चली गई, और
दवाखाने पहुंचता है 3 मिनट से ज्यादा ही समय हो जाता है, फिर वो नजर वापस नहीं आती। किसी को ब्रेन में अगर खून जम जाता है तो पैरालिसिस का स्ट्रोक आ जाता है। किसी को हृदय के अंदर वो जम गया तो अच्छा खासा हट्टा-कट्टा आदमी जो कोविड में से बाहर निकल गया, 30-32-35 साल की उम्र है, और सुनते हैं कि इसको ऑल ऑफ अ सडन हार्ट अटैक आ गया और वो गुजर गया। 35 साल 40 साल के लेडीज। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द कोएगुलेशन इन द वेसल्स। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि किडनी फेल हो जाए, किडनी के अंदर वो खून। तो मिथिलीन ब्लू की जो नेबुलाइजेशन है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को अटकाती है, तो वो खून को जमने से अटकाती है, म्यूकोरमाइकोसिस को होने से अटकाती है, लंग के फाइब्रोसिस को अटकाती है। तो तीनों जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है कोविड से बाहर आने के बाद, वो तीनों को वो अटकाती है। तो मिथिलीन ब्लू के बारे में हर आदमी ने, हर डॉक्टर ने पढ़ना चाहिए, खुले दिमाग से पढ़ना चाहिए। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आई ऑब्जर्व्ड कि वो मिथिलीन ब्लू के बारे में वो सोचना ही बंद कर दिया। वो सुनने को भी तैयार नहीं है। जब बोल, काफी बार जब मैं वेबिनार में बोलता हूँ, लेक्चर, तो कोई हमारी बात ही सुनने को तैयार नहीं। मिथिलीन ब्लू कोई दवा है वो ऐसा भी काफी लोग तो मानते हैं। बहुत सारे लोगों को यही है, ये कलर करने की डाई है। यस सर। हाँ, लेकिन अगर आप विकिपीडिया पे जाइए, यू ओपन द विकिपीडिया पेज ऑन मिथिलीन ब्लू, तो आपको पहला सेंटेंस दिखेगा, मिथिलीन ब्लू इज मिथाइल थायोनियम क्लोराइड, इट इज अ सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब ये हुआ कि ये स्टेबल है सोडियम क्लोराइड के जैसे। और दूसरा सॉल्ट जो है वो ऐसी एक केमिकल है कि जिसकी साइड इफेक्ट्स और रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। सो मिथाइल थायोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, is a medication, and is a dye. So you read on WHO's page, you read on Wikipedia page, you read anywhere about miथिलीन ब्लू, it is first a medication, secondarily is a dye. So primarily ये दवा है और secondarily वो कलर करने की डाई। तो काफी लोग तो मेरे से बहुत आश्चर्य होता है, काफी लोग ये बोलते हैं कि मिथिलीन ब्लू नामक कोई दवा होती है क्या, ये तो डाई है जींस के कपड़े को रंग। तो वो पढ़ना चाहिए कि ये पहले मेडिकेशन है, इंट्रावीनस इंजेक्शन के स्वरूप में अवेलेबल। तो कोई दवा अगर इंट्रावीनस देने के लिए अवेलेबल है, उसका मतलब ये हुआ कि सबसे सेफ है, तभी तो WHO ने इसको मान्य कर दिया। एंड इट इज 4.2 नंबर, एंट्री नंबर 4.2 ऑन WHO's एसेंशियल सेफ मेडिकेशन लिस्ट। आप जाइए WHO एसेंशियल सेफ मेडिकेशन लिस्ट 2015, वो खोलिए पेज WHO का, उसके ऊपर आप ऊपर से नीचे आ जाएंगे तो 4.2.4 नंबर के एंट्री पे मिथिलीन ब्लू लिखा हुआ 10 ml इंजेक्शन। और ये जो एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन है उसका मैं आपको थोड़ा बता दूं। WHO ने ये कंपलसरी किया हुआ है हर मेंबर नेशन को, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी राष्ट्र है 208 सभी के सभी नेशन को मिथिलीन ब्लू के इंजेक्शन हर शहर में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखना, ये सरकारों की जवाबदारी है। एक, दूसरा, इसके ऊपर टैक्स नहीं डाल सकते। तीसरा, इसकी जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल करना, इसलिए कि ये साइनाइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और नाइट्राइड पॉइजनिंग को रिवर्स करता है। और हर ऐसी केमिकल फैक्ट्री जहाँ साइनाइड बेस्ड कोई केमिस्ट्री बन रही है या नाइट्राइड बेस्ड केमिस्ट्री बन रही है, यहाँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग लीक होने की संभावना है, हर जगह पे एक डॉक्टर को हाजिर रखना होता है और कम से कम 1000 इंजेक्शन के वो फैक्ट्री के अंदर उन्होंने हाजिर रखना जरूरी होता है। क्योंकि अगर किसी को साइनाइड पॉइजनिंग हुई तो 20 मिनट ही का विंडो उसके पास होता है, 20 मिनट में नहीं दिया इंजेक्शन मर जाएगा। So they have to keep a doctor 24/7. They have to keep 1000 injection of miथिलीन blue, not just ampule. They have to fill one injection every day in the morning. Keep injection filled in ready, क्योंकि उसका भी टाइम नहीं है फोड़ने का और भरने का। और पूरे दिन में किसी को नहीं हुआ तो वो फेंक देने का, दूसरे दिन नया भर देना। Like atropine and like adrenaline, which we keep filled ready when we start any surgery. क्योंकि अगर किसी पेशेंट को सर्जरी के दरमियान हाइपोवोलेमिक शॉक होने लगा तो ये दोनों चीज फटाफट देनी है, तो भर के तैयार रखें, नहीं वापरे तो फेंक दिया। So in these chemical factories, they have to keep one syringe filled with miथिलीन blue every day in the morning. Discard next morning the new one.
ये कंपल्सन है WHO का। तो आप जाइए, पढ़िए, 1 करोड़ से आपकी पूरी जिंदगी खत्म लगेगी आपको अगर पढ़ने चालू कीजिए। इट्स मिरेकुलस मॉलिक्यूल, और इसको जिन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल किया डॉक्टर पॉल एहरलिच, उनको नोबेल प्राइज दिया गया 1908। सबसे पहले इन्होंने शुरू किया था इस्तेमाल करना 1870 तक, 1877, और 24 साल में इन्होंने मिथिलीन ब्लू की मदद से इतने सारे पेशेंटों की जान बचाई, मलेरिया और ये 4 रोग से बहुत लोग मर रहे थे, तो उनको नोबेल प्राइज एनायत की गई, डॉक्टर पॉल एहरलिच। तो डॉक्टर पॉल एहरलिच ने मिथिलीन ब्लू का एक शॉर्ट फॉर्म दिया था, MB, मिथिलीन ब्लू, और दूसरा उसने इसका नाम दिया है मैजिक बुलेट, MB। So he says that MB is MB, मिथिलीन ब्लू इज मैजिक बुलेट। now क्यों मैजिक बुलेट बोलते हैं इसको? कि जब आपके शरीर में ये जाती है तो बैक्टीरिया को मार देती है, उसकी सेल वॉल को छेद देती है, और फंगस की सेल वॉल को छेद देती है, वायरस को तोड़ देती है, लेकिन आपके सेल को नुकसान नहीं पहुंचा। तो ये ऐसी बुलेट है कि जो मशीन गन की तरह आपके शरीर में फायर हो जाएगी, और ये बुलेट जो है वो वायरस को मारेगी, फंगस को मारेगी, बैक्टीरिया को मारेगी, आपको आपके एक सेल को नुकसान नहीं पहुंचेगी। इसलिए मिथिलीन का नाम मैजिक बुलेट। तो मेरा सबसे प्रार्थना है कि आप आपके दिमाग के ताले खोलिए और पढ़िए। जितना भी डाउट्स है आपको जस्ट गूगल को पूछिए। पब्लिक पबमेड नामक एक वेबसाइट है जिसके ऊपर रिसर्च गेट पे जाइए, रिसर्च स्क्वायर पे जाइए, पबमेड पे जाइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पे जाइए, US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ हेल्थ पे जाइए। हर जगह पे आपको टोटली फ्री पेपर्स मिलेंगे। बहुत सारे पेटेंटेड रिसर्च ऐसे हैं जिसको पढ़ने के लिए आपने $20 भरने पड़े, 1500 रुपये भरेंगे तब आप एक बार वो आर्टिकल को पढ़ पाएंगे। दूसरी बार नहीं खुलेगा, एक ही बार खुलेगा। दूसरी बार खोलना है तो फिर और $10 भरना पड़ेगा। जबकि मिथिलीन ब्लू के बारे में जितने भी पेपर्स हैं वो सब के सब पेपर्स जो है वो ओपन पब्लिक डोमेन, और अब सब लोगों को पढ़ना चाहिए। थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात आपने की कि रिसर्च के रिगार्डिंग, के मिथिलीन ब्लू के रिगार्डिंग, क्योंकि ये सारी माहिती तो आई थिंक बहुत कम लोगों के पास होगी, जो आपके जैसे पुराने डॉक्टर्स है, बहुत कम डॉक्टर्स के पास इसकी इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन सर एक भी क्वेश्चन आता है म्यूकोरमाइकोसिस के रिगार्डिंग, कि देखो ये ड्यूरिंग कोविड और डायबिटिक जिसको ज्यादा रहेगा, और आफ्टर कोविड वो करके इतना शुगर लेगा, लेकिन फिर भी सर आज आप समझिए कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी देखे हैं कि वो स्टीरॉइड लेने के बाद होते म्यूकोरमाइकोसिस का उसका प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि उसको डायबिटिक भी नहीं है, बीपी भी नहीं है, और उसका मीन्स तो स्टीरॉइड का कितना रोल है इसमें? ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मुझे एक वाक्य याद रहा मेरे लाइफ में बना हुआ। जब मैं बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था बहुत सालों पहले, तो उस वक्त मिथिलीन ब्लू के इंजेक्शन अवेलेबल नहीं, और अंकलेश्वर GIDC और वापी GIDC में बहुत सारी फैक्ट्रियां थी जो साइनाइड के आधारित केमिकल, और बड़ौदा के आसपास भी रिफाइनरी थी और IPCL थी, उसमें भी बहुत सारे साइनाइड बेस्ड केमिकल्स उत्पन्न होते थे, और मिथिलीन ब्लू वाज ओनली एंटीडोट। तो उस वक्त हम लोग हमारी कॉलेज में मिथिलीन ब्लू का फार्मा ग्रेड का पाउडर रखते थे, और वो पाउडर को डिस्टिल वाटर में मिला के 500 ml के नॉर्मल सलाइन पॉइंट में भर के कैजुअलिटी में हमेशा 20-25 पॉइंट तैयार रखे, और जब भी ऐसा कोई पेशेंट आया केमिकल फैक्ट्री में से जिसको कि मीथियोग्लोबिन हो गया, वो पूरा ब्लू हो जाता बिकॉज ऑफ द हाइपोक्सिया। ऐसा समझ लीजिए आप, आदमी जो है वो बैंगन जैसे सिकुड़ा गया है और ब्लू हो गया, बिल्कुल बैंगन जैसा ही दिखता, इतना बुरा हो जाता। इसको आपने मिथिलीन ब्लू का IV पॉइंट चालू किया, और विदिन 40 मिनट्स ये जो बैंगन जैसा दिख रहा टोमेटो जैसा रेड हो जाएगा। यस सर। तो जस्ट गो मीट हीमोग्लोबिन कन्वर्जन बैक टू ऑक्सीहीमोग्लोबिन ऐसे डालेंगे गूगल पे तो तुरंत आपको ये सब फोटोज दिख जाएंगे जो हमारे हमने देखे होते हैं ऐसे। जी सर।
और कभी एक बार आप एक ऐसी मीटिंग रखिए जिसमें कि मैं ये सब रिसर्च पेपर मेरे कंप्यूटर में सबको दिखा सकूं और ये फोटोज भी दिखा सकूं, ऐसा भी एक बार रखेंगे। ચોક્કસ જિગ્નેશભાઈ, આપણે એ રીતનું સાહેબનું स्टीरॉइड की जो आप बोल લાઈવ આપણે કરશું કમ્પ્યુટરથી। पहली बात ये है कि अगर स्टीरॉइड यूज नहीं करेंगे तो पेशेंट हर हाल में मर जाएगा, because without steroid you cannot control the inflammation of the lung. तो स्टीरॉइड अगर यूज नहीं किया तो आदमी का मरना 100% पक्का, इन्हें न्यूमोनिया स्टेज ऑफ द कोविड। तो स्टीरॉइड तो यूज करना है। स्टीरॉइड जो 2000 तक है, ऐसे भी काट दिया, ऐसे भी काट दिया। When we use steroid, the blood sugar increases even in normal person, because वो स्टीरॉइड जो है वो जितनी भी ग्लाइकोजन है आपके शरीर के अंदर, मसल के अंदर स्टोर हुई शुगर है, वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में फुल करके ले आता है। तो a person who is on steroid is temporarily diabetic, even if he is not diabetic. So that is number one. So any patient who has come back from COVID, he should be checking his blood sugar every day. और दूसरा कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जो बॉर्डरलाइन डायबिटीज, जिसको पता नहीं है कि मेरा डायबिटीज है, लेकिन वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं कोविड होने के वजह से। कोविड वायरस ऑल्सो इंड्यूसेस इडिमा इन पैंक्रियास, और पैंक्रियास में अगर एक बार इडिमा इंड्यूस हो गया तो इंसुलिन का जो सेक्रेशन घट जाएगा। वो जो किनारी पे चल रहा था उसका मानो ब्लड शुगर 140 के आसपास रह रहा था, तो 100 के अंदर होना चाहिए, 140 145 के आसपास उसका रह रहा था, तो वो समझ है मुझे डायबिटीज नहीं है, वो 140 से 240 300 हो गए। So COVID has a tendency to precipitate diabetes in early those who are pro-diabetic, and those who are completely non-diabetic, even for them the use of steroid induces a short-term diabetes for a temporary. So the patient must not eat anything other than protein. तो शुगर वाली कोई भी खुराक जो है उसने 3 महीने तक खानी ही नहीं, और अगर खानी है तो शुगर को मॉनिटर करना। और होता क्या है कि इतनी कमजोरी लगती है पेशेंट को, कोई इसको मिठाई और राब और सीरा ये डाल के बना पिलाते घर में, ऐसा समझ के कि उसमें से ताकत आ जाएगी। वो ग्लूकोज में ताकत नहीं है, ग्लूकोज में से शुगर बढ़ती है और ये इसको जन्म देती है। तो स्टीरॉइड इज द मेनस्टे ऑफ किलिंग द इन्फ्लेमेशन। कोविड उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी मर जाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे तो म्यूकोरमाइकोसिस का चांस है। बट सबसे बढ़िया चीज ये है कि मिथिलिन ब्लू का 4 ml का नेबुलाइजेशन 3 महीने तक रोज एक बार वो पेशेंट सब में लेना है। It will prevent fibrosis in the lung, it will reduce the chance of platelet aggregation, intravascular blood coagulation, it will also reduce the possibility of to almost need, because it is the fungicidal, pan fungicidal। आप ब्लैक फंगस जो है आपकी ब्रेड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए, आपके ब्रेड पे ब्लैक फंगस उगाइए, 2-3 दिन सड़ने दीजिए ब्रेड को, ब्लैक फंगस एक बार उग गई तो उसके ऊपर थोड़ा मिथिलिन ब्लू आपने स्प्रे कर दीजिए, और फिर देखिए दूसरे दिन ब्रेड जो है आपकी नॉर्मल सफेद हो जाएगी। So it's very simple, you know, there are certain things which you can experiment at your home। कहीं पे आपके किचन में वॉश बेसिन में अगर ब्लैक फंगस हो गई कोने पर और वो जा नहीं रही है, आप मिथिलिन ब्लू का एक बार पोंछा मार दीजिए, वो दूसरे दिन निकल जाएगी। यस सर, थैंक यू सर। ખૂબ ખૂબ આભાર જિગ્નેશભાઈ। दूसरी बात भी थी कि बहुत सारे पेशेंट कोविड में उसका O2 लेवल डिक्रीज होता है तो हमें उसको ऑक्सीजन देनी पड़ती है, तो क्या सर ये उसमें ये सही बात है कि क्या इम्यूनिटी फायर में वाटर के साथ मिथिलिन ब्लू उसको देना चाहिए सर? બહુ મહત્વપૂર્ણ સવાલ છે। There are 2 reasons why there is oxygen saturation depletion। एक रीजन पहला ये है कि आपका लंग्स पानी से भर गया है आधे से ज्यादा, तो जो लंग्स है वो एब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि more than half of the lungs is dysfunctional। तो ऑक्सीजन आप कितना भी दे रहे हैं लंग्स में से जा नहीं रहे हैं, और ब्लड जो है उसमें ऑक्सीमोग्लोबिन है, वो मीथेमोग्लोबिन, तो मीथेमोग्लोबिन है उस तक अगर ऑक्सीजन पहुंचा भी तो वो लेगा नहीं,
The supply of the oxygen is reduced from the lungs and the transportation of the oxygen is again reduced by the blood. आप ये समझ लीजिए कि आपने दिल्ली से ऑक्सीजन को गुजरात पहुंचाना है, तो आपके पास दोनों चीज चाहिए कि दिल्ली में आप दिल्ली आपका लंग्स है समझ लीजिए, गुजरात जो आपकी एक्सट्रीमिटी आपकी फिंगर है, तो दिल्ली में आपके पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वैसे भी नहीं है, पर ये तो इमेजिनेशन कर रहा हूँ मैं कि दिल्ली आपके लंग्स है, वहाँ ऑक्सीजन आ नहीं, तो थोड़ी बहुत आ रही है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के रेलवे का वैगन नहीं, तो रेलवे का वैगन क्या है आपका रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल में ऑक्सीमोग्लोबिन है, वो मीथोमोग्लोबिन हो गया, तो व्हाटएवर लिटिल ऑक्सीजन कम्स इज नॉट ट्रांसपोर्टेड। तो आप मिथिलीन ब्लू का इनहेलेशन इनको देंगे तो दोनों चीज रिवर्स हो जाएंगे, आपकी लंग्स की जो फाइब्रोसिस कम होने लगेगी, लंग्स का कंजेशन कम हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन जो है वो मीथोमोग्लोबिन विल बी कन्वर्टेड बैक टू ऑक्सीमोग्लोबिन। तो दोनों ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एज वेल एज एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म दोनों पे मिथिलीन ब्लू काम करता है। तो अब आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स हु आर ऑन बाइपेप या तो ऑन वेरी हाई फ्लो ऑक्सीजन 15-16 लीटर चल रहा है, उसको आप मिथिलीन ब्लू का इनहेलेशन देते हैं या इंट्रावेनस मिथिलीन ब्लू देते हैं, 2 आवर्स 3 आवर्स ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो 16 से कम हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, और SpO2 जो 80-85 मुश्किल से रहता था वो सीधा 95, 97, 98। ओके, तो सर एक ये भी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इम्यूनिटी बूस्टर में मिथिलीन ब्लू देना चाहिए, तो म्यूकरमाइकोसिस Not as immunity booster. इम्यूनिटी फायर Methylene blue is not boosting your immunity, it is helping your immunity by killing the fungus itself directly. यस, तो ये म्यूकरमाइकोसिस के लिए भी बहुत अच्छे फायदे मिथिलीन ब्लू लेने से होते हैं। Yes. Methylene blue has 3 actions: antifibrotic to prevent lung fibrosis, antifungal to prevent mucormycosis, and antiplatelet aggregation to prevent intravascular coagulation. यस सर, थैंक यू सर। अभी सर एक लास्ट में एक आप अपना एक मार्गदर्शन दीजिए सर सबको, एक अपनी गुजराती लैंग्वेज में कि साहब एक गुजराती में कहिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मिथिलीन ब्लू कैसे लेनी चाहिए। एक हिंदी में तो आपने बहुत अच्छा आपने समझाया, एक थोड़ा बहुत लिटिल बिट आपको गुजराती में एक कन्वर्ट करके एक छोटा सा एक आप बता दीजिए कि मिथिलीन ब्लू कैसे लेना चाहिए, कोविड में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऑक्सीजन डाउन हो तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी सर। સૌથી પહેલા ગુજરાતીમાં હું કહેવાય એ માંગુ કે દરેકે દરેક ઘરમાં મિથિલીન બ્લુ, શુદ્ધ મિથિલીન બ્લુનું પ્રોપર કોન્સન્ટ્રેશન દ્રાવણ હોવું જોઈએ। એટલા બધા મેં ઓબ્ઝર્વેશન એટલા બધા લોકોને કર્યા, હું ખાલી તમને કહું કે 400 ml બંધુ અમારા વર્તુળ છે, એ લોકો મારા બંધુઓ જે છે એ સૌથી વધારે એક્સપોઝડ લોટ છે। યસ સર, બરાબર, કારણ કે જે દર્શકોને ખ્યાલ નથી કે MR એટલે શું, એમને આપણે જણાવીએ કે MR એટલે મેડિકલ રિપોર્ટ। યસ સર, એટલે ફાર્મા કંપનીઓ જે હોય એ અને ડોક્ટરની વચ્ચે જ્ઞાનની એક સાંકળ પડી છે કે તે સેલ્સ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે ફાર્મા કંપની। એક MR બંધુને રોજ લગભગ 20 ડોક્ટરને મળવાનું હોય છે, અને દરેક ડોક્ટરને મળવા જાય 5-10 મિનિટ એમને બહાર વેઇટિંગ બધા પેશન્ટોની વચ્ચે બેસવાનું। 20 અલગ અલગ બ્રાન્ચના ડોક્ટરો એટલે અલગ અલગ જાતના પેશન્ટોની વચ્ચે બેસવાનું, એટલે એક તો એમનો એક્સપોઝર લેવલ સૌથી વધારે કે 20 દવાખાના ફરો, 20 ડોક્ટરને મળો, 20 જાતના પેશન્ટોની વચ્ચે બેઠો। બીજું કે દે આર કોન્સ્ટન્ટલી ઓન ટ્રાવેલ, આજે આ ગામ છે, કાલે બીજે ગામ, પરમ દિવસે ત્રીજે ગામ, એટલે રોજ નવી હોટેલમાં એમને રહેવાનું। હવે એ હોટેલ હંમેશા એવી નથી હોતી કે જે ફૂલ્લી સેનિટાઇઝ હોય કે બે આગલા પેશન્ટ આગલા પેસેન્જર ને આપણા પેશન્ટ વચ્ચે એ લોકોને ડિસઇન્ફેક્શન કરતા, તો દે આર એટ અ રિસ્ક ઇવન ઇન ધ હોટેલ। ઘરનું ખાવાનું મોટાભાગના એમાં બંધુઓને 20-25 10 દિવસ ઘરમાં હોય, 20-22 દિવસ પૂરી। તો બહારગામ જ્યારે જાય ત્યારે એમને અલગ અલગ જગ્યાએ જમવાનું થતું, ત્યાં અલગ અલગ જગ્યાએ જમવાનું થતું હોય ત્યાં સ્ટીલના થાળી વાટકા હોય, સ્ટીલ ઉપર કોરોના વાયરસ છે 6 દિવસ સુધી રહે, તો સાબુથી ધોવામાં
કારણ કે કોરોના વાયરસ છે એને તમે ઘીની કણી સમજો, કારણ કે લિપિડ વાયરસ છે, લિપિડ એન્વેલપ આરએનએ વાયરસ, એટલે ઘીની કણી જેવું જ છે. એટલે માનો કે કોઈ માણસે પાણી પીધું ને એના મોઢામાં વાયરસ છે, તો એ પાણીનો જે ગ્લાસ છે સ્ટેનલેસ સ્ટીલનો, એના ઉપર એ વાયરસ ચોંટી ગયા. 6 દિવસ સુધી સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ઉપર જીવિત રહે, કાચ ઉપર 6 દિવસ જીવિત રહે. અને જો સાબુના પાણીથી 20 સેકન્ડ ન ધોવો તો એ ત્યાંથી છૂટો ન પડે, ચોંટેલો. સાદા પાણીથી ખાલી માનો કે સ્ટીલનું વાસણ કોઈ ધોઈ ને તો વાયરસ નથી ગયો. હવે એ ગ્લાસમાં બીજો વ્યક્તિ પાણી પીશે એટલે એના મોઢામાં ગયો. તો જ્યારે તમે, એટલે હું ઘણા બધાને કહું છું લગ્નમાં જાઓ ને ક્યાંય જવાનું જ નહીં, પણ જાઓ તો જમવાનું તો નહીં જ. કારણ કે લગ્નની અંદર જે વાસણ છે ને એ પહેલી પંગતમાં તમે જમવાના હો તોય આગલા દિવસે જે જમ્યા હોય ને માણસો, એના વાયરસ એમાં ચોંટેલા છે. 6 દિવસ સુધીના વાયરસમાં સ્ટીલના વાસણ. તો એમઆર બંધુઓ જે છે એ લોકો જુદી જુદી હોટલમાં જમે છે, સ્ટીલના કે કાચના વાસણમાં જમે છે, જુદી હોટલમાં રહે છે, રોજ 30 મળે. એટલે they are the maximally exposed not. એનું એક્સપોઝર લેવલ બીજા કોઈને એટલું નથી. આઈસીયુમાં, કોવિડ આઈસીયુમાં ટ્રીટમેન્ટ કરનારા ડોક્ટર અને નર્સિંગ સ્ટાફ પછીનું નેક્સ્ટ એક્સપોઝર લેવલ કોઈનું હોય ને તો એમઆર બંધુઓ. 400 એમઆર બંધુઓ મારી પાસે મિથિલિન બ્લુ થઈ ગયા છે. જે લોકો એમાંથી મિથિલિન બ્લુ રોજનું લે છે, 8 મહિનામાં એક પણ જણ પોઝિટિવ. અમુક એવા એમઆર બંધુઓ છે કે આખું ફેમિલી પોઝિટિવ આવ્યું, એની વાઇફ ન લે, એના ફાધર મધર ને શ્રદ્ધા ન હોય, મિથિલિન ન લેતા. ઘણાને એવું છે કે મને કિડની થઈ, મને કેન્સર થઈ, મારું લીવર ફેલ્યોર થયું, મારું કિડની ફેલ્યોર. તમે ખાલી, હું બધાને અપીલ કરું છું તમે વાંચો. કિડની ફેલ્યોરની ટ્રીટમેન્ટમાં મિથિલિન બ્લુ વપરાય. પ્રોસ્ટેટ કેન્સર, બ્રેસ્ટ કેન્સર અને બોન કેન્સરની કિમોથેરાપીમાં મિથિલિન બ્લુ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ધ કિમોથેરાપી. યુ રીડ ધીસ પેપર. આ બધું પબ્લિક ડોમેન ઉપર છે. અને લીવર સિરોસિસ અને પલ્મોનરી સિન્ડ્રોમ થાય એટલે કોઈનું દારૂ પીવાથી લીવર ખરાબ થઈ ગયું, સિરોસિસ ને કારણે એને પલ્મોનરી સિન્ડ્રોમ થાય, એટલે કે ફેફસામાં લોહી હાઇપરટેન્શન થાય, ફેફસામાં લોહી આવે ઘણાને, પછી લોહીની ઉલટીઓ થાય. એમાં મિથિલિન બ્લુ આપવામાં આવે તો લીવરની અંદર જે ફાઇબ્રોસિસ ઘટે છે ને, લીવર પહોળું થાય છે અને પોર્ટલ હાઇપરટેન્શન ઘટે છે. એ પણ મિથિલિન બ્લુ દ્વારા ટ્રીટમેન્ટ થાય છે. એ પણ તમે જોઈ શકો. એલ્ઝાઇમર ડિઝીઝને રિવર્સ કરે, પાર્કિન્સન ડિઝીઝને હોલ્ડ, હન્ટિંગ્ટન ડિઝીઝ નામનો એક રોગ છે જે દિમાગનો રોગ, આલ્ઝાઇમર જેવો છે પણ આલ્ઝાઇમર છે 70 વર્ષ પછીની ઉંમરે થાય. હન્ટિંગ્ટન છે ને એ યંગ એજમાં થાય, 30-35 વર્ષના માણસનો દિમાગ છે પોલું થઈ, કોતરાઈ જાય, પોલું ઉધઈ જેમ ખાઈ ગઈ હોય ને જેવું થઈને પછી 40 વર્ષના એને હન્ટિંગ્ટન ડિઝીઝ છે. હન્ટિંગ્ટન ડિઝીઝમાં પણ મિથિલિન બ્લુ ઇઝ પાર્ટ ઓફ ધ થેરાપી. ફ્રાન્સમાં એક સર્વે થયો જે 17 માર્ચ 2020 ના દિવસે પબ્લિશ થયો, એ હજી ઇન્ટરનેટ ઉપર છે. ફ્રાન્સમાં એક જુદા જુદા કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં 6000 પેશન્ટોનો એ લોકો સર્વે. 6000 પેશન્ટોમાંથી 2500 પેશન્ટ એવા હતા કે જેના કેન્સર કાં પ્રોસ્ટેટના હતા, કાં બ્રેસ્ટના હતા, કાં બોન કેન્સર હતા. એ લોકોને જે કિમોથેરાપી આપવામાં આવી રહી હતી એમાં મિથિલિન બ્લુ વોઝ અ કોમ્પોનન્ટ ઓફ ધ along with other drugs. તો આ 6000 માંથી 2500 પેશન્ટ જેને કિમોથેરાપીમાં મિથિલિન બ્લુ કોમ્પોનન્ટ તરીકે હતું, એમાંથી એક પણ પેશન્ટને કોવિડ ના, અને બધા 60-65 વર્ષની ઉંમરના ટર્મિનલી કોમોર્બિડિટી વાળા. અને એ 6000 માંથી બાકીના જે 3500 રહ્યા, કે જે 3500 લોકોમાં કિમોથેરાપીમાં મિથિલિન બ્લુ વોઝ નોટ પાર્ટ ઓફ ઇટ, એમાંથી 70% લોકોને કેન્સર થયું, કોવિડ થયું ને ગુજરી. એટલે 2500 ને કિમોથેરાપીમાં મિથિલિન બ્લુ, એક પણ પેશન્ટનું મૃત્યુ ન થયું, એક પણ પેશન્ટને કોવિડ. આ પબ્લિક, ધીસ પેપર ઇઝ ઓન પબ્લિક ડોમેન. તમે વાંચી શકો છો. પ્લીઝ સર, હજી એક પેપરનું એ નામ ને ડેટ. યુનિવર્સિટી ઓફ ફ્લોરેન્સ અને ફ્રેન્ચ 2500 ફ્રેન્ચ પેશન્ટ સર્વાઇવલ અગેન્સ્ટ કોવિડ બાય કિમોથેરાપી વિથ મિથિલિન બ્લુ. આ શબ્દ નાખશો એટલે પેપર. પેપરનો નંબર મને અત્યારે યાદ નથી, તો પીએમસી નંબર પણ છે પબ્લિકેશન. પણ એ ક્યારેક જો એકવાર આપણે આ બતાવી શકીએ ને, એવું જો કોઈ તમે રાખી શકો લેક્ચર, તો આઈ કેન શો ઓલ ધીસ. પણ ધેટ પેપર ઇઝ સ્ટીલ ધેર.
એટલે કહેવાનું શું છે કે ઘણા લોકોને મનમાં એવી શંકા હોય છે કે મને કેન્સર થઈ જશે મિથિલિન બ્લુ લેવાથી લાંબો સમય. તો હું ઈ જણાવવા માંગુ છું કે કેન્સર ના થાય, કેન્સરની કિમોથેરાપી. લીવરને ખરાબ નહીં થાય, લીવરના ખરાબીને મટાડવાની દવા છે. કિડની ખરાબ નહીં થાય, કિડની ખરાબી તમામ રોગોમાં રાહત થશે, તમામ રોગો સારા થશે, એવું ડોક્ટર સાહેબનું કહેવું છે. લિથોટ્રિપ્સી અને કિડનીને કાઢવાના ઓપરેશન સફળ નહોતા થતા ત્યારે મિથિલિન બ્લુ 65 મિલીગ્રામ સવાર બપોર ને સાંજ 3 વાર 65 મિલીગ્રામ, આપણે તો 4 મિલીગ્રામની વાત કરીએ એક ટાઈમની. 65 મિલીગ્રામ મિથિલિન બ્લુ સવાર બપોર સાંજ એટલે 195 મિલીગ્રામ દર 24 કલાકે 6 વર્ષ સુધી આપવામાં આવે કિડની સ્ટોનને ઓગાળવા. કેલ્શિયમ ઓક્ઝલેટ સ્ટોન મિથિલિન બ્લુ થી ઓગળે છે, નાના થતા જાય ને કાંકરી જેવું થઈ જાય પાતળું થઈને, એ પછી પેશાબમાં ફૂંક. એટલે જે વસ્તુ અત્યારે લિથોટ્રિપ્સી થાય છે એ મિથિલિન બ્લુ થી કેમિકલી કરવામાં આવે. તો સાહેબ રાજકોટ હોસ્પિટલ વાળા છે એ હાવ ખોટી ના નહીં? પબ્લિક ડોમેન સાહેબ રાજકોટનો કેસ છે એમાં હાવ ખોટા ડોક્ટરો અડધી બોટલ પી ગયા એટલે સાઈડ ઇફેક્ટ થઈ આવું કે છે. 5 to 6 years એપ્લિકેશન સ્ટડી. આટલા શબ્દો ગૂગલમાં નાખશો એટલે તમને એ પેપર વાંચો. તો હું શું કહેતો હતો કે જે લોકોને આવી બીક હતી મનમાં, મને ફલાણું થઈ જાય, ઢીકણું થઈ જાય, નહોતા લેતા, તો એમઆર બધું 400 જે છે ને એના ફેમિલીમાં જે નહોતા લેતા ને તે બીકેમ પોઝિટિવ. પણ આ લોકોને પોઝિટિવ ના થાય ને એમાંના અમુક એમાં તમારી જેમ કોક વચ્ચે વચ્ચે કોક દી લે કોક દી ન લે ને રેગ્યુલર જે કરતા એને થયું. પણ થયા પછી ખ્યાલ આવી ગયો ને એ લોકોને બીજે દિવસે સવારથી ચાલુ કરી દીધું મિથિલિન બ્લુ. સો ધ ડિઝીઝ સ્ટોપ. It did not have to go into any kind of ICU stage. એટલે મિથિલિન બ્લુ 400 mr માં મેં ઓબ્ઝર્વ કર્યું. અમે 1000 થી વધારે તો ફ્રેન્ડ સર્કલ ની અંદર અમે લિસ્ટ રાખી. ઓકે, આ 1000 આપણા ફ્રેન્ડ સર્કલ ના ફેમિલી જેને આપ્યા. મારે એક મિત્ર છે, એમને બહુ મોટી કન્સ્ટ્રક્શન કંપની, એમની નીચે 600 લેબર કામ કરે છે ગુજરાતથી આવેલા, મોટી કોલોની હોય છે લોકો. એ બધાને આપે છે. એક પણ જણને કન્સ્ટ્રક્શન નું કામ ચાલુ રાખ, લોકડાઉનમાં એનું બાંધકામનું કામ ચાલુ, કારણ કે લોકડાઉનમાં કન્સ્ટ્રક્શન નું કામ બંધ કરવાની પેલી નહોતી, એટલે દે કન્ટિન્યુડ ધેર કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક ઇવન ડ્યુરિંગ ધ લોકડાઉન. તો એ માનનો એક પણ જણ હજી પોઝિટિવ. એટલે મારા ખુદના જાણમાં લગભગ 2000 માણસો એવા છે કે લોકો રેગ્યુલર મિથિલિન બ્લુ છે લે છે. પણ કન્ડિશન ઈ છે કે રેગ્યુલર 14 કલાકે તમારા શરીરમાંથી નીકળી જાય. 14 કલાક પછી તમારું પાછું ફૂલ વલ્નરેબિલિટી ખુલ્લી થઈ ગઈ. એટલે ઇટ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી લાઈક પ્રેગ્નન્સી. You take, if you want protection, you take it every day. 3 દિવસ 4 દિવસની વિન્ડો વચ્ચે પડી એટલે તમને લાગી પછી. જિગ્નેશભાઈ સાહેબને બીક છે. તમે જે આટલી એકેડેમિક જે ઇન્ફોર્મેશન શેર કરી સર, એ ખરેખર બહુ ઓછા માણસોને ખબર હોય. પણ સર આની એક જોકે મારે વાત ના કરાય, પણ તેમ છતાંય હવે આટલી સરસ મેડિસિન્સ અવેલેબલ છે, તોય મારે એક મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે ઘણા ખરા ન્યૂઝપેપરમાં વાંચ્યું, ફેસબુકની અંદર લાઈવ મીડિયામાં વાંચ્યું કે મિથિલિન બ્લુ ને બહુ બદનામ કરવામાં આવે છે સાહેબ, કે લાઈક ધેટ કે ફલાણી XYZ સિવિલ હોસ્પિટલમાં 2-3 દર્દી સિરિયસ થઈ ગયા, કે ભાવનગરમાં એવા કેસ આવ્યા કે મિથિલિન બ્લુ પીવાથી ડાયરિયા, ડિસેન્ટ્રી, વોમિટિંગ એવું બધું થઈ ગયું એમ. તો આ વસ્તુ આખી સમજમાં નથી આવતી એમ સાહેબ. હવે એમાં છે ને 2-3 વસ્તુ. એક પહેલી વસ્તુ એ છે કે મિથિલિન બ્લુ પેટન્ટેબલ દવા છે અને WHO ના પ્રાઇસ કંટ્રોલમાં છે, કારણ કે એસેન્શિયલ મેડિસિન પબ્લિક હેલ્થ. જી સર. એટલે એની જે દવા છે એની મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ પર 20% થી વધારે કંપની પ્રોફિટ થઈ. એટલે કોઈ કંપનીને આ દવાને સ્પોન્સર કરી અને કોવિડ માટે મંજૂરીઓ લેવી સરકાર પાસે કોઈ કંપનીને પોસાય એવું છે. અને કોવિડ માટે એક્સપ્રેસ મંજૂરી લેવી એટલે 100-200 કરોડ ખર્ચાનો મામલો હોય છે. એ બહુ નાનો મામલો નથી હોતો, કારણ કે phase 1, phase 2 અને phase 3 ક્લિનિકલ ટ્રાયલ કરવી. ક્લિનિકલ ટ્રાયલનું ગણિત બહુ જ મોંઘું છે. ક્લિનિકલ ટ્રાયલ ખાલી રજીસ્ટર કરાવીએ ને phase 1 ટ્રાયલમાં કરવી હોય તમારે 20 પેશન્ટ ઉપર, તો 20 પેશન્ટનો વીમો મેડિક્લેમ.
કારણ કે માનો કે કોઈ નવી દવા લીધી અને પેશન્ટ ગુજરી ગયું તો એની જવાબદારી દવા કંપનીની બધી. એટલે તમે 20 પેશન્ટને સંમતિ લ્યો, 20 પેશન્ટનો વીમો ઉતરાવો અને કોમ્પ્યુટર છે ને રેન્ડમાઇઝ કરે કે આને મિથિલિન બ્લુ આપવાનું અને આને નહીં આપવાનું. તો એમાં જે ડોક્ટર હોય એને ચોઇસ નથી હોતી. કંટ્રોલ ટ્રાયલ આરસીટી નો એક બહુ મોટું કોમ્પ્લિકેટેડ સાયન્સ છે. હવે રેન્ડમાઇઝેશનમાં માનો કે આ વ્યક્તિનો નંબર આવ્યો મિથિલિન બ્લુ ના ગ્રુપમાં, હવે એમ કે મારે નથી લેવી એટલે એને મુક્ય પડતું. પછી નેક્સ્ટ પાછો બીજા મુદ્દાવાળો આવે કે આ પડે ત્યારે થાય. એટલે રેન્ડમ કંટ્રોલ ટ્રાયલ ની ફેઝ 1, ફેઝ 2 અને ફેઝ 3 ત્રણ સ્ટડીને પૂરા કરવા જઈએ તો એ 15-20 કરોડ નો ખર્ચો થાય. એમાં ઉતરાવો ને આ બધું કરવાનું. અને 1.5 થી 2 વર્ષનો સમય લાગે. એટલે જ્યારે પેન્ડેમિક ચાલુ છે ત્યારે એવો કઈ આપણી પાસે સમય હોય નહીં. 2022 પૂરું થવાનું છે ડિસેમ્બરમાં. એવું તો મારું માનવું છે, કારણ કે મને અમુક સોર્સ માંથી માહિતી યુ રાઈટ સર. તમે દવા કંપની વાળા છો, તમને ખબર. સાહેબ અમે કોઈ ક્લિનિકલ ટ્રાયલ ની વાટે નથી બેઠા, અમે એક્શન લઈ લીધી. સુંદરમાં સુંદર અને સારામાં સારા ગુણો ધરાવતી કામઠી કન્યા છે. પણ એ કામઠી કન્યાનો હાથ પકડવા વાળું કોઈ નથી, સ્પોન્સર કરવા વાળું કોઈ નથી, કારણ કે અનાથાશ્રમની છે. આ દશા મિથિલિન બ્લુ છે. પણ મારો તો બધાને અપીલ એવી જ છે કે તમારે સરકાર કે કોઈનું શું કામ સાંભળવું જોઈએ. તમે ખાલી તમારા અંતરાત્માનું સાંભળો. તમે એક વખત એના વિશે વાંચો, 5 પેશન્ટમાં વાપરો કે 10 પેશન્ટમાં વાપરો, તમને રિઝલ્ટ મળે તો કન્ટિન્યુ કરજો, ના મળે તો બંધ કરી દો. પણ તમે પહેલેથી શું કામ દિમાગ કાઢો છો બંધ કરી? સાહેબ ને કયો સાહેબ. ન્યુઝીલેન્ડમાં થઈ છે, ચાઇનામાં થઈ છે, થાઈલેન્ડમાં થઈ છે, જાપાનમાં થઈ છે, રશિયામાં થઈ છે, અમેરિકામાં થઈ છે અને ઈરાનમાં થઈ છે. 7 કે 8 જગ્યાએ વિશે ટ્રાયલો થઈને પબ્લિશ થઈ ચૂકી. તો તમારે શું કામ ફરી વખત નહીં કરવી? નહીં આ તમારે નવેસરથી વિમાન શું કામ બનાવવાનું? ચક્રની અમે ઈ નિયમ ઉપર જ ચાલ્યા છીએ સાહેબ. દર વખતે કઈ નવેસરથી શું કામ ચૂકવાય? એના ઉપર આગળ ચાલો ને તમે. એટલે 10 પગથિયા ચડ્યા, આપણે સીધું 11મું પગથિયું ના ચડીએ. આપણે 11મો નહીં, સીધો 12મા ઉપર જ જમ્પ માર્યો છે, બબે ચડ્યા. તો મિથિલિન બ્લુ આપણે શું તમે ક્વેશ્ચન શું ક્વેશ્ચન એ હતું સર કે આપણે શું કે બધી પબ્લિક્સ ને તમે સમજાવો કે કોવિડમાં શું કરાય શું ના કરાય અને મિથિલિન બ્લુ નો ઉપયોગ એમ. એટલે હવે આ મેં કીધું એ પ્રમાણે કે જે બાપ વગરની કન્યા હોય ને એને બદનામ કરવા માટે સૌ બહુ તૈયાર. એટલે વાંચા કર્યા કે સમજ્યા વિના એના વિશે ઘસાતો અભિપ્રાય આપવા માટે બધા સમાજમાં ઉત્સુક હોય. એમ બધા મેડિકલ સમાજમાં એવું બને. એટલે મોટા ભાગના ડોક્ટરો જેમ કે મિથિલિન બ્લુ આવી છે ને તેવી છે ને એના વિશે ઘસાતું કોઈ નેગેટિવ બોલતું હોય તો એ પોતપોતાનું મંતવ્ય. પણ મારી બધાને અપીલ છે કે તમે એકવાર વાંચો, ચાહો તો બધાની સામે ડિબેટમાં આ બધું રજૂ કરવા માટે ખૂબ નેગેટિવ એને આપણે બતાવીએ કે આ સાહેબ. અચ્છા, હવે અમુક રાજકોટની એક સિવિલ 3 પેશન્ટો સિરિયસ થઈ ગયા. હવે આખી બોટલ જે છે એ એક ધારી ગટગટાવી જાય કોઈ માણસ સમજ્યા હણ્યા વગર. તો એમાં તો આપણે શું કરી શકીએ? કોઈ માણસ છે માનો કે થમ્સઅપ 200 ml પીવાની છે, પણ કોઈ તમને લાવી દીધું 1000 ml 2 લીટરની બોટલ. તમે 2 લીટર થમ્સઅપ એકારે ગટગટાવી જાવ તો થમ્સઅપ થી મરી જાય માણસ. કોકા-કોલા થી કળશો દૂધ સારું પી ગયો હોય ને તોય ઝાડા થઈ જાય. કોફી પીવાની આખો થર્મોસ ભરીને એક માણસ પી જાય કોફી તો એને ઝાડા ઉલટી થઈ જાય. એટલે તમે આ બહારનો ઉપયોગ કરો કઈ વિચાર કર્યા વિના સમજ્યા હણ્યા વિના તો એ તો સાઈડ ઇફેક્ટ કોઈ પણ દવાની થાય. એ કઈ કોઈ દવા સાઈડ એટલું દૂધ પી જાવ ને એ કારણે આવડું મોટું થર્મોસ ભરીને તોય ઝાડા, ખાલી દૂધ થી ઝાડા. એટલે મિથિલિન બ્લુ થી ડાયરિયા, નોસિયા, વોમિટિંગ જે લોકોને થયા છે કાં તો એને માપ બહાર પીધું હોય ક્વોલિટી બહાર નથી.
કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીની ક્વોલિટીની ઇન્જેક્શનમાંથી તમે વેરીફાઈડ કરેલી કર્યા? જિગ્નેશભાઈ સાહેબને કયો, જિગ્નેશભાઈ પ્લીઝ અવાજ આવે છે, સાહેબને સાથે વાત કરાવો. એની અંદર જિગ્નેશભાઈ આજે બ્લુટુથ ક્યાંક અટવાડ્યું છે ને. અને એના લોભ નો હોય. જી સર, રાઈટ સર, થેન્ક યુ સર. અને સર લાસ્ટમાં થોડોક અશ્વિનભાઈ નો અવાજ બહુ ઓછો આવે છે ત્યાંથી, એટલે કા રીકનેક્ટ અશ્વિનભાઈ તમને તમારી યાર નહીં, હું મારી વાત કહી દઉં છું. રીકનેક્ટ કરો સાહેબ યા પછી ડિસ્કનેક્ટ કરીને પાછું તમે મને શું છે. અશ્વિનભાઈને પણ મને ring અચ્છા કરી. અશ્વિનભાઈ સેકન્ડ નંબર માંથી તમે સાહેબને રિંગ કરો તમારા અલગ નંબર માંથી અને ગો ટુ, અને તમે વાત કરો આમાં સાહેબ તમારી ટોક ક્યાં સંભળાય છે, સાહેબની ટોક અહીંયા હા, હું સંભળાય છે. અહીંયા એમને સ્પીકર ફોન ઉપર મૂકું. નહીં, સાહેબને કયો મારું સાહેબના ફોનમાં મારું ફેસબુક જ ખોલી નાખો, બીજો ફોન નથી અહીંયા. એ પોસિબલ નહીં થાય, તમે એક કામ કરો જિગ્નેશભાઈ, નહીં, ઓલમોસ્ટ આપણે જે મારી વાત સાંભળો, ઓલમોસ્ટ આપણા જે મુદ્દાઓ હતા એ સમજાઈ ગયા છે. સાહેબે જેમ કીધું કે આપણે ક્લિનિકલ ટ્રાયલની, જિગ્નેશભાઈ તમે લાઈવમાં આવી જાઓ, હું તમને ડાયરેક્ટ મારું લાઈવ જોવો. ઓકે. જી જિગ્નેશભાઈ, સાહેબે જે ડિટેલમાં બધી વસ્તુ સમજાવી, આ લાઈવ હિન્દીમાં કરવા પાછળનું કારણ એ હતું કે જે લોકો ગુજરાત બહાર છે અને મિથિલિન બ્લુની જે આ ચમત્કારિક અસરો છે, સારવાર મિથિલિન બ્લુ થી લઈને જે અનેક લોકો સારા થયા છે, આ વિષયને સમજી નહોતા શકતા, એટલા માટે આપણે આ આખું લાઈવ હિન્દીમાં કર્યું. અને ડોક્ટર સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને સાહેબને મારે એક વસ્તુ એ પણ કહેવી છે કે તમે જેમ કહ્યું કે બાપ વિનાની દીકરી એટલે એની ઉપર લોકો અનેક વાતો કરશે, પણ તમે જેમ કીધું ને કે ક્લિનિકલ ટ્રાયલની રાહે બેસીએ તો એ 15-20 કરોડ કે 50 કરોડનો ખર્ચો કરવા માટે અમારી પાસે એટલા પૈસા નહોતા. અમે ડોક્ટર ગોલવાલકર સાહેબના ઓલું કહેવાય ને એક અપીલના ભાગરૂપે અમે ઝંપલાવી દીધું. અને કાકડિયા સાહેબ, અમે સુરતની અંદર 1,90,000 લીટર, સાહેબ 1,90,000 લીટર મિથિલિન બ્લુ બનાવીને, સામે બનાવીને અમે વિતરણ કર્યું છે, લોકો સુધી પહોંચાડ્યું છે. અને એમાંથી આજ સુધી સિંગલ એવો પેશન્ટ નથી કે જેણે કોઈ કમ્પ્લેન કરી હોય. ઓફિશિયલ અમારી પાસે કોરોના પોઝિટિવ દર્દીઓના નામ નંબર સાથેની ડિટેલ છે, એક્સેલ શીટ બનેલી છે. સિંગલ રેન્ડમલી ફોન કરો ને તો પણ સિંગલ વ્યક્તિની એવી કમ્પ્લેન નથી આવી કે અમને કોઈ આડઅસર થઈ છે. ઉલટાનું એને બીજા બધા રોગોની અંદર ફાયદો થયો હોય, કોઈને થાઇરોઇડની ગાંઠ પીગળી ગઈ હોય, કોઈના અંગૂઠા વળતા ન હોય, પગના બીજા કોઈ રોગ હોય, આ તમામ રોગોની અંદર મિથિલિન બ્લુ, તમે જેમ કીધું ને મેજિક બુલેટ, આ મેજિક બુલેટનો મારો અમે જોરદાર કરી દીધો છે સાહેબ. અને હવે આ મેજિક બુલેટનો જે પ્રહાર, જે ઓલું કહેવાય ને અમારી પાસે મશીન જ એવું આવી ગયું છે કે અમે હવે ગુજરાતને તો ઓલું ધમરોળી નાખશું, આખું બ્લુ કરી નાખશું. પણ એની સાથે હવે તમે હિન્દીમાં તમારી સાથે જે પણ ડોક્ટર મિત્રો સાંભળ્યું, જે પણ મિત્રોએ આ વિષયને મિથિલિન બ્લુની સારવાર કઈ રીતના લેવી કરવી એની વિશે જગદીશભાઈ આપણા ડોક્ટર કાકડિયા સાહેબ સાથે જે डिस्कशन जो है निराते सांभळजो. बाहर से जो लोग गुजरात बाहर के लोग हैं वो भी ये पूरा डिस्कशन हिंदी में है, तो इसको आराम से अपने डॉक्टर को समझाइए. क्योंकि वहां दिल्ली में भी मैं जब तक मुझे ख्याल है जो डॉक्टर साहब ने जैसे बोला है कि 65 के बाद जो डॉक्टर बने हैं उनको मिथिलिन ब्लू क्या है वो पता ही नहीं है, वो मानते ही नहीं है, वो एज ए डाई उसको समझ के छोड़ देते हैं. लेकिन ये दवा है, असरकारक दवा है और लोगों को बहुत फायदा हुआ है. डॉक्टर साहब ने जो भी डिटेल में ये समझाया है उसको आप अपने लोकल डॉक्टरों को समझाइए. नहीं समझ में आता है तो डॉक्टर साहब का संपर्क कर सकते हैं, हमारा संपर्क कर सकते हैं. और अब तो ऐसा हुआ है कि હવે એવું થયું છે કે અમે સાહેબની સાથે ડિસ્કશન કરીને અમે અડધા ડોક્ટર જેવા થઈ ગયા છીએ. અમારાથી બનતા પ્રયાસો મિત્રો કરશું ચોક્કસ, અને આવનારા દિવસોમાં વધુ વિગત સાથે વધુ લોકો સુધી પહોંચવાના પ્રયાસ સાથે અમારી મહેનતને હર ઘર મિથિલિન બ્લુ, ઘર ઘર મિથિલિન બ્લુ, આ અમે સપનું સાકાર કરવાના છે. અને ગોલવાલકર સાહેબના જે દવાના રિઝલ્ટ છે
એ લોકો સુધી પહોંચાડીને આ મહામારીથી ગમે એવો મ્યુટેશન થયેલો વાયરસ આવે એને સાહેબે કીધું એમ 40 મિનિટમાં એ ખતમ કરી નાખે એવી દવા છે. તો આપણે બીજી કોઈ રાહ નથી જોવી, કોઈ લફડામાં કે કોઈના ભ્રમિત કરવાના કોઈ ચક્કરમાં પડવું નથી. આપણે આપણું કામ કરવું છે. હર ઘર મિથિલિન બ્લુ, ઘર ઘર મિથિલિન બ્લુ. અને આ મિશનની અંદર જે પણ મિત્રોનો સહયોગ મળ્યો છે એમનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, આભાર માનું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય ભારત.